यस टीचर्स, हम इस प्रोफेशन में जितने भी साल से काम कर रहे हैं, जो भी टीचिंग प्रोफेशन में हम हैं, तो व्हाट टीचिंग एग्जैक्टली इज फॉर अस. ओके, पूजा मैम बोली है कि इन अ वे टू डिलीवर आवर नॉलेज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट, हमारे स्टूडेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से हम हमारा नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं. ओके, संगीता मैम बोली है डू दी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, राइट. सो नॉट जस्ट पासिंग ऑन द नॉलेज बट ऑल्सो हम बच्चों का ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट या तो फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं उस पर भी हमारा ज्यादा फोकस होता है. ओके, फिर I Ma'am, yes, hello. yes, sir. Ma'am, teaching that is just imparting a knowledge, Okay, imparting a knowledge, giving a knowledge that is to the students. That is teaching. okay, okay. Thank you, sir. जैसे सर ने बोला कि टीचिंग इज टू इम्पार्ट नॉलेज, बट आई हैव अ क्वेश्चन. Imparting wouldn't be a very negative word. Can we impart knowledge? Can we force each and every student that we cater to? Yes, I need your Helping opinions. to the students, Yes, ma'am. helping to the students to know the things. Right, because we can't make or maybe we can't impart our knowledge on anybody, right? So yes, I think हमारे भी थोड़े से words या तो फिर थोड़ी सी vocabulary हम लोग change करें, that would be a wonderful thing. Because helping in a way हम जो भी profession में है, we are helping our students, right? So yes, imparting would be a little negative word for that matter. So I would request each and every teacher present here not to use this word because that's a little negative. Yes, I'm just reading the comments now. Okay. Deepak sir बोले कि teaching is the process of attending to children's need, experiences and feelings and making specific interventions to help them learn particular things. Right. Dhamishta ma'am बोले कि all around development of the child, जो हमने already देखा, holistic development. Then Sunita ma'am is saying teaching is exchange of knowledge, right? It's not just we have knowledge and सिर्फ हम ही बच्चों को knowledge दे रहे, but बहुत सारी चीजें बच्चे भी हमें सिखा रहे. So in a way, we can say that teaching is exchanging of the knowledge. Okay, yes, Shilpa ma'am is saying we can't force anything, right? Shobha ma'am is saying to nurture a child in such a way that he or she can tackle his real life hurdles. That's a wonderful point, ma'am. हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उनको आगे लाइफ में जो भी उनके प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे हैं तो उनको वो किस तरीके से केटर कर सके, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से वो हैंडल कर सके, वो सारी चीजों को भी हम बच्चों को एक्सपीरियंस करा रहे हैं. ओके, रागिनी मैम इज सेइंग टीचिंग इज चेंज ऑफ आवर एंड स्टूडेंट्स लाइफ. दैट्स टोटली ट्रू अगेन कि हम लोग ऑफ कोर्स ये सारा जो भी चीजें कर रहे हैं तो उनसे हम बच्चों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो ला रहे हैं, बट वो जितने भी अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ हम लोग काम करते हैं, हर एक स्टूडेंट हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंज लाता है. So yes, definitely it's a reciprocal change we can say. And Divakar sir is saying sharing knowledge and experience to develop skills. Totally, हम लोग knowledge का sharing भी कर रहे हैं as well as अलग अलग जो भी skills important होने वाली हमारी लाइफ में, तो वो सारी चीजों का भी हम लोग बच्चों में डेवलपमेंट करें. Zara ma'am is saying what we know we give them, what they know we take. Yes, totally. So reciprocal understanding, reciprocal knowledge sharing. Okay, right. So हमारे पास काफी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डेफिनेशंस टीचिंग की ऑलरेडी अवेलेबल है. So now I have two more questions regarding the session. The first one is what are instructional tools and what are instructional skills. So for 5 or 7 minutes, let's just discuss on what are instructional tools. Instructional tools कौन से है और कौन से हम even use कर रहे हैं, if we are using any. Okay, teaching aids. Deepak sir, can you give more specific examples of teaching aids?
मैम जब मैथ्स का अगर लेक्चर है तो उसमें बच्चों के लिए समझिए चार्ट वगैरह का इस्तेमाल है, मॉडल्स का है, टेबल्स के हैं, तो जो भी हम उसके लिए इंस्ट्रक्शन के लिए वो भी टूल्स इस्तेमाल करेंगे, वो टीचिंग एड्स में आता है। राइट राइट राइट, थैंक यू सर। सो जैसे हमने उस दिन भी डिस्कशन किया था, ऑल द रिसोर्सेज एंड द मटेरियल दैट कैन बी पुट अप इन द क्लास। Projectors. यस, प्रोजेक्टर्स हो गया, We can हमारे use the ब्लैक बोर्ड हो projectors, गए। PPTs and all. Yes, yes, the physical thing or maybe the technological things that we use, right? So we can consider this into instructional tools, okay? Computers हो गया, या तो फिर charts, models, okay? Divakar sir is saying tool used in class to support students' learning. Example, teaching. Okay. So blackboard and chalk, projectors, the way we teach, the stories. Okay, so the way we teach and the stories, I guess वो teaching tools में नहीं आएगा, I mean instructional tools में नहीं आएगा, but the kind of different strategies that we use. So we can consider stories and the way we teach is into strategies. Pooja ma'am is saying chalk, duster, chartboard, smart class, right? Aparna ma'am is saying teaching is a person who helps, a teacher is a person who helps students to acquire knowledge, okay? Lesson plan, yes, definitely that's an instructional tool for us. हमें बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ानी है, that's उनका मतलब उसका एक brief हमारे पास list available है, okay? Smart class, charts, whiteboards, then we have teaching aids like puppets, flashcards, charts, PPTs, math model, chart model, picture model, chart models. Okay, right. So these are some of the examples we can say of instructional tools. Okay, so now moving towards the next question, that is, what are instructional skills? What do we exactly understand by instructional skills? Give the student instructions that they are not restricted. जैसे कि उनको वो प्रेशराइज ना हो, लेकिन उनको इंटरेस्ट आए पढ़ने में कि हमें क्या पढ़ना है. Right, ma'am. जैसे कि हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट करें तो फिर वो टॉपिक एक पर्टिकुलर हम पढ़ने ही वाले हैं ऐसा नहीं, उनको एक इंटरेस्ट पहले दिला दो, एक शॉर्ट स्टोरी या तो फिर जनरल नॉलेज का कोई बता दो बात उसके बारे में. जैसे कि मैथ्स में है तो हम लोग पाइथागोरस कहाँ यूज कर सकते हैं नॉल, इस तरह से तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले कि हाँ हमें ये पढ़ना चाहिए इस तरह. Okay, that's true, ma'am, that's true. Okay, so I have few more questions. Teaching techniques, chalk duster. Okay, chalk duster would be into tools that we are basically using, Ragini ma'am. Teaching techniques, yes, different techniques that we use, different skills that we have, जहाँ पे हम बच्चों को अलग-अलग तरीके से instructions वगैरह दे रहे हैं. So yes, these are some of the examples we can consider into teaching instructional skills. Okay, so now let's just move ahead. आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने की तरफ लेट्स जस्ट मूव. सो एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि अगर हमें ये जो भी सारे स्किल्स है, अलग अलग टूल्स है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, अगर हमें अच्छे से अप्लाई करनी है देन हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है टू नो द काइंड ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन वी डील विद. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स. आप सबको ऑलरेडी मालूम है कि प्राइमरी सेक्शन में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं दे आर वेरी 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 क्यूरियस. अगर हम क्लासरूम के अंदर कुछ भी नई नई चीज लेके आएंगे देन दे वुड बी लाइक अच्छा मैम ये क्या है, और आपको हजारों अलग अलग क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे. सो यस, प्राइमरी स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली क्यूरियस. और फिर धीरे धीरे आई डू यू थिंक क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बच्चों में घटती जाती है एज दे एज, या तो फिर उनका जो सेकेंडरी सेक्शन में आ गए या तो फिर हायर सेकेंडरी सेक्शन में आ गए? डू यू थिंक कि बच्चों की क्यूरियोसिटी कम हो जाती है? Yes, ma'am, because of the technology, they already aware about most of the things. Okay, so of course शायद क्लासरूम के अंदर वो जिस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे पहले, उतने शायद विद द एज बच्चे नहीं पूछेंगे, बिकॉज उनके पास खुद के पास जो इंटरनेट का एक्सेस है या तो फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो वो खुद से कहीं ना कहीं से ढूंढ सकते हैं. बट ओके, चलो ठीक है, लेट्स जस्ट मूव अहेड. लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ पीयर्स. अगर हम प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को ग्रुप वर्क करवाएंगे या तो फिर प्ले एक्टिविटीज करवाएंगे जहाँ पे दे हैव टू मर्ज विद अदर पीयर मेंबर्स ऑफ द क्लासरूम,
तो उनको जल्दी से समझ में आता है, या तो फिर उनका जो लर्निंग प्रोसेस है और ज्यादा फ्रूटफुल बन जाता है। उसके बाद लर्न थ्रू प्ले फास्टर। ऑफ कोर्स जैसे हम प्राइमरी सेक्शन की बात कर, प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो वहां पे ज्यादातर गेम्स वगैरह होती है कंपेयर टू सेकेंडरी या तो फिर हायर सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को हम जितना ज्यादा फिजिकली इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कल हमने अलग अलग मल्टीपल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स देखे, राइट? तो विद एज ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में हमें बच्चों को हर एक अलग अलग उसके एक्सपीरियंस कराने हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू नो कि कौन सा बच्चा कौन से अलग अलग मेथड से सीख रहा है। सो यस, लर्निंग थ्रू प्ले हैपेंस फास्टर इन प्राइमरी सेक्शन, नॉट जस्ट प्राइमरी सेक्शन, इवन आई बिलीव कि अगर हम सेकेंडरी वाले बच्चों को या तो फिर हमारे जो हायर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको विथ प्ले या तो फिर जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को करा रहे हैं उससे ज्यादा उनका जो मेमोरी है वो टिकता है। आई मीन जो भी पर्टिकुलर चीज वो सीख रहे हैं तो उनको लॉन्गर टाइम के लिए वो सारी चीज याद रहती है, बिकॉज उन्होंने नॉट जस्ट मैम बोल रहे हैं उन्होंने सिर्फ सुना, तो उनका जो ऑडिटरी लर्निंग है वो नहीं हो रहा था, बट उनका किनेस्थेटिक लर्निंग भी हो रहा था, उनका विजुअल लर्निंग भी हो रहा था। तो जितने अलग अलग लर्निंग पैटर्न को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हर एक अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हमारी जो भी सारी चीजें हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो सारी चीजें वो जल्दी से सीखने वाले हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू बॉडीज एंड सेंसेस। ये जो प्राइमरी सेक्शन हो गया, प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होंगे उनको हम जितना ज्यादा हैंड एक्सपीरियंसेस कराएंगे, यानी कि टच फील का एक्सपीरियंसेस कराएंगे, सेंसेस का जितना ज्यादा हम 5 अलग अलग सेंसेस का यूज करेंगे ऐसे बच्चों के साथ कि जहाँ पे उनको 5 सेंसेस तो यूज करनी है एज वेल एज द होल बॉडी दे आर यूजिंग। तो जितना ज्यादा उनकी फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व होगी, जितने ज्यादा अलग अलग सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा उनका लर्निंग प्रोसेस फ्रूटफुल रहेगा। उसके बाद सीक इंडिपेंडेंस एंड मास्टरी। ये प्राइमरी सेक्शन के बच्चे जितना ज्यादा अलग अलग चीजें जानते हैं उतना ज्यादा उन्हें लगता है कि अच्छा ये चीज तो मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ। वी नो एज टीचर्स कि शायद उनके लिए रिस्की हो सकता है, शायद थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो दैट इज फैक्चुअल समटाइम्स, राइट? तो ऑफकोर्स बट ये एज में बच्चों का ऐसा है कि नहीं नहीं मुझे सारी चीज खुद से करनी है। सो ऑफकोर्स हम जितना ज्यादा बच्चों को इंडिपेंडेंसी देंगे अलग अलग चीजें सीखने में, डेफिनेटली विद प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट, तो ये बच्चे बहुत जल्दी से सीखते हैं। एंड लास्टली यूज स्टोरीज टू अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग। तो जैसे कि हमने अलग अलग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो जो भी हम स्ट्रैटेजीज बच्चों के साथ यूज कर रहे हैं, मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज कैन बी स्टोरीज। हम जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा रहे हैं। यस रेनो मैम, आपको कुछ शेयर करना है? ओके, आई थिंक उनका ऐसे ही अनम्यूट हो गया, दैट्स फाइन। तो अगर हम प्राइमरी सेक्शन के बच्चों की बात करें तो जितना ज्यादा हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में स्टोरीज इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बच्चों को मजा आएगा। और आई थिंक ये चीज मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, बिकॉज आई हैव सो मेनी बच्चा पार्टीज एट माय होम। तो मे बी दे आर फ्रॉम आई गेस 1 year to 6 years। तो हर एक जब भी हम लोग मिलते हैं अलग अलग सिचुएशंस में हम मतलब मैं उनके साथ अलग अलग स्टोरीज शेयर करती हूँ अबाउट द काइंड ऑफ डे वी हैड, या तो फिर उनकी कोई हैबिट्स ऐसी है जो शायद हमें लग रहा है कि वो चेंज करने जैसी, तो वो हैबिट को किस तरीके से चेंज करना है। तो अगर हम उनको डायरेक्टली बोलेंगे तो शायद बच्चे हमें सुनेंगे नहीं, उन्हें लगेगा कि अच्छा ये तो बोलते ही रहते हैं, मुझे ये सारी चीज फॉलो नहीं करनी है। बट अगर हम उनको एक मोरल स्टोरीज के रूप में या तो फिर कोई स्टोरी ऐसी बता रहे हैं जहाँ से उनको ये हम डायरेक्टली नहीं बता रहे बट वो कहीं ना कहीं से खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद से सीख रहे कि अच्छा ये जो किया ना वो गलत था, तो फिर ऑटोमेटिकली वो अपने अंदर हैबिट कल्टीवेट कर लेंगे। सो ऑफकोर्स स्टोरीज हेल्प मोस्टली, तो आप ये सारी चीज भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल्सो स्टोरीज नॉट ओनली विद प्राइमरी सेक्शन स्टूडेंट्स बट स्टोरीज हर एक अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को सुनना अच्छा लगता है। तो शायद अगर हमारे कोई केमिस्ट्री के लेक्चर्स हो गए या तो फिर हमारे सोशल स्टडीज के लेक्चर हो गए या तो फिर हमारा मैथ्स का कुछ हो गया कि जहाँ पे हम स्टोरीज कोई भी फॉर्म में इंक्लूड कर सके हमारे बच्चों के साथ, तो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है हम और ज्यादा ब्यूटीफुल या तो फिर और ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। So yes, this is with characteristics of primary students. Now moving towards our secondary students. तो अगर secondary students की बात करें तो उनके characteristics में जो भी है shift from learning alone to learning in groups.
इंडिपेंडेंटली वो जो सारी चीजें कर रहे थे उनको बहुत मजा आता है सारी चीज करने में। बट नाउ विद एज विद टाइम विद डिफरेंट सेक्शंस सारे बच्चे धीरे धीरे अच्छा चलो एक दोस्त के साथ घुल मिल के कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या तो फिर धीरे धीरे 2 का ग्रुप बन रहा है, 3 का ग्रुप बन रहा है, 4 का ग्रुप बन रहा है। सो दिस इज हाउ विद एज वो ग्रुप्स में जल्दी से सीखते हैं। जैसे पीयर टू पीयर लर्निंग की हम लोग आगे बात करने वाले हैं, और इसका एक और एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी आगे एक बार डिस्कशन किया था कि जब भी हमारी एग्जाम होती है और एग्जाम के आधे घंटे पहले या तो फिर 1 घंटे पहले अगर हमारा दोस्त हमें कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या तो फिर वो जो टॉपिक हमें नहीं आना था उसके बारे में सिखा दे, तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। सो यस, दैट स्टार्ट्स टू हैपन ड्यूरिंग सेकेंडरी सेक्शंस। उसके बाद द नेक्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। अभी धीरे धीरे उनका जो भी सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है तो वो समझ पा रहे कि अच्छा मेरा किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे कौन सी चीज का ध्यान रखना है। तो ऑफकोर्स सेकेंडरी सेक्शन में वो सारी चीजें हो रही है। अगर हायर सेकेंडरी की हम लोग बात करें तो हायर सेकेंडरी में सेल्फ डेवलपमेंट दे आर वेरी 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 उनको क्या बोले कि एकदम कॉन्शियस होते हैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे। तो ऑफकोर्स अभी थोड़ा सा उनका स्टार्टिंग लेवल पे है, बट विद हायर सेकेंडरी सेक्शंस और ज्यादा कॉन्शियसनेस वो सेल्फ डेवलपमेंट में फील करने लग जाते हैं। उसके बाद सीक्स बोथ डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस सॉरी। तो कभी कभी कोई चीज उनको इंडिपेंडेंटली करनी है, और कभी कभी अच्छा उनको लगता है कि मुझे अगर कोई टीचर हेल्प कर लेगा या तो फिर अच्छा मेरे कोई फ्रेंड्स हेल्प कर लेंगे देन दैट विल बी अ बेस्ट थिंग फॉर मी। तो ऑफकोर्स अभी वो दोनों इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिपेंडेंसी भी है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी भी है। उसके बाद दे आर वेरी वेरी सेल्फ कॉन्शियस एंड सेल्फ फोकस्ड। अभी इस एज में थोड़ा सा इगोइस्टिक उनका नेचर हो जाता है कि अच्छा मुझे सारी चीज आती है, राइट, मुझे ये सारी चीज जो मैम मुझे ना बोले मैं कर सकता हूँ, मुझे करने दो। सो उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस भी बढ़ जाता है, सेल्फ फोकस्ड भी हो जाता है, प्लस उनका जो इगोइस्टिक थोड़ा सा नेचर होता है वो भी थोड़ा सा रिफाइन होके और ज्यादा इगोइस्टिक हो जाता है। बट डेफिनेटली विद 1 or 2 years वो वापस नॉर्मल उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा नहीं, ये जो मेरा नेचर दैट्स गना नॉट हेल्प मी आउट। तो ये सारी चीजें हैं, प्लस स्टार्टिंग टू कंस्ट्रक्ट सेल्फ आइडेंटिटी। अभी धीरे धीरे अच्छा मैं कौन हूँ, मेरे क्या लाइक्स है क्या डिसलाइक्स है, सेल्फ आइडेंटिटी बेसिकली अगर मुझे लोग जानेंगे तो किस हिसाब से जानने वाले, तो सारी चीज धीरे धीरे उनकी डेवलप होती जा रही है। उसके बाद कोऑपरेटिव पीयर लर्निंग हो रहा है, जैसे हमने ऑलरेडी ग्रुप वर्क देखा है तो फिर ग्रुप स्टडीज देखा, तो सिमिलरली वो अपने कोई पीयर को सिखाएंगे भी या तो फिर अपने कोई पीयर से सीखने भी वाले हैं। और इन अ वे कोऑपरेटिव सारी चीजें हो रही है, रेसिप्रोकल सारी चीजें हो रही है। तो सेकेंडरी सेक्शन तक ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। और अगर हायर सेकेंडरी सेक्शंस की बात करें तो जितनी भी सारी चीजें हमने देखी वो और से और ज्यादा रिफाइन होती जाती है, राइट। तो ये हो गया उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी सेकेंडरी के। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, या तो फिर आपने शायद कुछ और चीजें देखी हो अपने क्लासरूम्स में? यस टीचर्स, अगर आपने कुछ नई चीज ऑब्जर्व की हो क्लासरूम के अंदर, या तो फिर इन्हीं सारी स्किल्स में से कोई स्किल्स के ऊपर आपने उनके कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखे हो। Anybody from higher secondary, secondary, or maybe primary section? Yes, teachers. Okay, Pradhanya ma'am is saying that some students are overconfident sometimes. Okay. प्रधानी मैम आप उनका एज ग्रुप मेंशन कर सकते हैं? आई मीन कौन से सेकेंडरी कौन से सेक्शन से वो बिलोंग कर रहे हैं? ओके, हाई सेकेंडरी सेक्शंस, सम आर लेजी एज वेल। ओके, दैट्स ट्रू। फिर एनी अदर टीचर हैज एनी एक्सपीरियंसेस? हेलो मैम। यस संगीता मैम। हाँ मैम, कुछ प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट्स में ये भी होता है कि उनमें इतना ये
कि मुझसे आगे कोई और ना जाए, इसकी वजह से वो है ना अपने नोटबुक्स भी एक दूसरे से शेयर नहीं करते, देते नहीं राइट राइट किसी को, कि वो मुझसे आगे ना चला जाए, ये भी एक उनके माइंड में एक हो जाता है। राइट राइट, दैट्स सो ट्रू। समटाइम्स उनको ऐसा कॉम्पिटिटिव नेचर बिल्ड ऑन हो जाता है उनका। यस प्रधान मैम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जैसे मैम ने बताया कि नोटबुक शेयर नहीं करते, तो कुछ करते हैं तो गलत नोट्स भी शेयर करते हैं, ऐसे भी है राइट कि हाँ मैंने ये किया है, सबको बताना है कि ये मेरे पास आंसर है, लेकिन ये गलत शेयर करेंगे, असली अपने पास रखेंगे। या तो किसी के पास ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स शेयर नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, कि मुझे जीतना है। तो ये मोस्टली क्या होता है, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज भी जब हमारे स्कूल में होते हैं, तो है कुछ बच्चे की जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं ना, उनको गलत स्पीच दे देना या समथिंग, और फिर खुद के जीतने के लिए ये करना। तो ये रास्ता भी उन लोग अपनाते हैं। और कुछ है तो बहुत ही हेल्पिंग रहते हैं कि नहीं तू ये लर्न कर, तू ये कर, उस चक्कर में उन लोग हेल्पिंग नेचर के इसमें पीछे हो जाते हैं, और कुछ है कि साइड से निकल जाते हैं। और कुछ राइट इतने लेजी होते हैं कि हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा मैम, हम लोग पढ़ लेंगे, आपने बता दिया हम लोग कर लेंगे। और कुछ राइट। इतने ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम लोग को करेक्ट करना है, नहीं ये मेरा ही राइट है, ये मैंने किया है, यही सही है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं से ऐसे सोर्सेस निकाल के लाते हैं कि मैं कहीं से मैम को गलत कर सकूं। इस तरह राइट की मतलब मैंने एक्सपीरियंस किए हैं 4-5। राइट, दैट्स सो ट्रू मैम। हायर सेकेंडरी सेक्शन में वैसे भी अगर हम लोग देखें तो वो टीन एज हम लोग बोल सकते हैं बच्चों की। और टीन एज में या ऑफ दैट्स कोर्स करेक्ट। उनके ये जो भी सारे डिफरेंट बिहेवियर्स है, एक तो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा हो जाती है बिकॉज मे बी ऑफ द कल्चरल थिंग्स दैट वी बिलोंग फ्रॉम। तो शायद उसकी वजह से, बिकॉज द काइंड ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वी हैव इन आवर कंट्री, हर एक इंस्टीट्यूशन में हम खुद देख सकते हैं कि अच्छा आपके इतने मार्क्स आए तो ही आप अंदर आ सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू गेट इनटू सच इंस्टीट्यूशंस, तो वो ऑलरेडी शायद हमारी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पर्सनालिटी भी बिल्ड ऑन हो जाती है। इवन आई हैव एक्सपीरियंस सम ऑफ द पीयर ग्रुप्स दैट आई हैड। सो यस, दैट्स सो ट्रू मैम। बट फिर अगर हमारे पास ऐसी नेगेटिव कोई सिचुएशन आ रही है, देन हाउ कैन वी ओवरकम दीज नेगेटिव थिंग्स? जैसे अगर मुझे कुछ मिलता है, अगर कोई बच्चे ऐसे निगेटिव वे में जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनको मॉरल स्टोरीज बताती हूँ, या फिर क्लास में एक पीरियड थोड़ा वेस्ट हो जाता है 15-20 मिनट के लिए, तो उनको अच्छे अच्छे थॉट्स, जैसे टाटा है, रतन टाटा जी के थॉट्स है, गोल्डा अब्दुल कलाम सर के हैं, और ये उनको ले लेके हम लोग उनको इंस्पायर करते हैं कि तुम लोग उनको मत बोलो कि ये तो जीत ही जाएगा, ये तो कर ही लेता है, इसका तो नाम फिक्स ही है। कुछ कुछ ये भी है, मतलब उस वजह से अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि नहीं ये तो कंपटीशन में ये तो फिक्स है, या तो इसको तो आता ही है, मैम इसी को लेगी, हमें क्या करना है। तो जो ऐसे पीछे होते हैं, तो मोस्टली मैं उनको आगे लाने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके। तो मॉरल स्टोरीज इसमें मुझे हेल्प करती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों को ही मैं आगे लाती हूँ, ताकि बाकी लोग भी उनको देख के ज्वाइन हो जाते हैं। इस तरह से राइट, करते करते मेरा थोड़ा ग्रुप बन गया, बड़ा हो गया ऐसा। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू मैम। थैंक यू। फिर शोभा मैम भी बोल रहे हैं कि उनके चिल्ड्रन दे आर वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। यस, helping each other, like they complete their work before the time and tell us to correct their work by themselves. That's so true. शोभा मैम, आप उनका सेक्शन थोड़ा सा बता सकती हैं हमें, कौन से सेक्शन की आप बात कर रहे हैं? ओके, प्राइमरी सेक्शन। और फिर पूजा मैम भी बोल रहे कि सम ऑफ देम आर मोटिवेशन स्पीकर्स, दे एक्ट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर द अदर स्टूडेंट्स। सो यस, जैसे हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे कि बहुत बार हमें शायद पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं, और शायद कभी कभी कुछ बच्चे उनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव उनका पर्सनालिटी भी डेवलप कर रहे हैं। सो यस, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हो सकती है और होने के ऑफकोर्स चांसेस है। बट उनको हम किस तरीके से फिर पॉजिटिवली ले, उनका मैम ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि द काइंड ऑफ डिफरेंट स्टोरीज वी कैन नरेट टू दोज स्टूडेंट्स। तो ऑफ कोर्स जैसे हमने देखा, स्टोरीज विल डेफिनेटली हेल्प ईच एंड एवरी डिफरेंट ग्रुप दैट वी केटर टू, राइट? ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग। अगर हमें हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट इफेक्टिव बनाना है, हम जो भी सारी लर्निंग प्रोसेसेस या तो फिर लर्निंग स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनको हमें और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, देन the first thing would be to understand the kind of methodology we have as a teacher. हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, हम जो भी स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, वो क्यों यूज कर रहे हैं,
और अगर ये यूज करेंगे तो उससे हमारे बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर बेनिफिट्स इतने ज्यादा हो रहे तो कहीं ना कहीं शायद वो बेनिफिट्स नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें दे सकते हैं। तो वो क्या क्या सारी चीजें हैं, तो सारी चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बिफोर वी इम्प्लीमेंट दोज पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले एज अ टीचर वी नीड टू फाइनलाइज कि अच्छा हमें इस साल हमारे बच्चों के अंदर ये सारी चीजें इनकलकेट करनी है, या तो फिर उनको हेल्प करना है ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। तो उसका एक लिस्ट हमने बना लिया, और उसके बाद उसके बेस पे हम कौन सी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज उनके साथ यूज कर रहे हैं, तो वो हमने अप्लाई कर दिया, तो फिर वो हमने डिसाइड कर दी। और उसके बाद वो स्ट्रैटेजीज कौन से वे में पूरे क्लासरूम के अंदर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, दैट वी कैन कंसिडर इनटू अंडरस्टैंडिंग अ टीचिंग मेथोडोलॉजी। जो भी हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हम डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी चाहिए। उसके बाद इफेक्टिव टीचिंग इज कॉन्टेक्सचुअल ड्रिवन। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ऑफकोर्स जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज करना सोच रहे हैं, बट अगेन हमें सबसे पहला फोकस कहाँ पे रखना होगा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, वो बच्चों का बैकग्राउंड क्या हो सकता है। अच्छा, जैसे हमने कल देखा कि कुछ कुछ बच्चे शायद हो सकते हैं कि काइनेस्थेटिक लर्नर है, या तो कुछ कुछ ऑडिटरी लर्नर है। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से एवरेज भी अगर ये सारी अलग अलग हम लोग इंटेलिजेंस फॉलो करेंगे, तो मेजोरिटी पूरे क्लास को सारी चीज समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो ऑफकोर्स हम जो भी सारी चीज फॉलो कर रहे हैं बच्चों के साथ, या तो फिर फॉलो करने का सोच रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन है। हर साल वो चीज बदलती रहनी है, बिकॉज हर साल हमारे पास नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए नए डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज बदलने वाली है। प्लस अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस अभी कंडक्ट कर रहे हैं, तो यस ये कॉन्टेक्चुअल है, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे फिजिकल क्लासरूम्स हमारे अभी काफी काफी कम है, और मोस्टली स्कूल्स में देखे तो ऑनलाइन क्लासेस ही हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। सो ये हो गया। अपर्णा मैम का शायद कुछ है कि सम स्टूडेंट्स आल्सो डू आर्ग्यूमेंट्स विद टीचर्स। यस दैट्स सो ट्रू। जैसे अगर हायर सेकेंडरी सेक्शन की स्पेसिफिकली बात करें, या तो फिर सेकेंडरी सेक्शन में इस एज में बच्चे अपना डिसीजन, उनको लगता है कि अच्छा मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ, या तो मेरे भी अपने अलग अलग ओपिनियंस है। तो वो ओपिनियंस को वो हमारे साथ किस तरीके से शेयर करेंगे, या तो फिर शायद हमें कन्विंस करने में हमें लगेगा कि अच्छा वो हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करे, और शायद बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होते भी है, फिर ऐसा करते भी है कि अच्छा नहीं टीचर मैं बोल रहा हूँ वही सही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो शायद वो आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर उनका बिल्ड ऑन हो जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि अच्छा मेरा ओपिनियन जो है वही राइट। बट एज अ टीचर हमें ये सारी चीज कंसिडर करनी है कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ द एज, उनकी जो एज चेंज हो रही है, वो एज की वजह से उनका ये पर्टिकुलर नेचर आ रहा है, राइट। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज अगर हमें हमारा इंस्ट्रक्शनल अप्रोच बिल्ड करना है, तो वो किन किन चीजों पे बेस करेगा। तो सबसे पहले अकोमोडेटिंग इंडिविजुअल नीड्स। जैसे कल हमने ऑलरेडी देखा, हर एक बच्चे की शायद अलग अलग इंटेलिजेंस हो सकती है, हर एक बच्चे की अलग अलग नीड्स हो सकती है। तो वो नीड्स के बेसिस पे सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द नीड्स, और फिर उसमें से ऑफ कोर्स इंडिविजुअली शायद हमारे पास 50 या तो फिर 60 का क्लास होगा, तो हर एक बच्चे के लिए हम लोग इंडिविजुअली नीड बेस्ड प्लान नहीं कर पाएंगे। बट एवरेज हमें उसमें से देखना है कि हर एक स्टूडेंट की ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स कॉमन है, और फिर वो कॉमन नीड्स कॉमन प्रॉब्लम्स को हम लोग केटर कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम लोग हमारा इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस बना रहे हैं। उसके बाद उनके क्या क्या एबिलिटीज है, जैसे कि शायद कोई स्टूडेंट्स होंगे कि वो दूसरों को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, या तो फिर कोई स्टूडेंट्स होगा कि वो बहुत अच्छे से कोई क्रिएटिवली दूसरी चीज प्लान आउट कर सकता है। तो दिस इज हाउ हमें एक तो सब बच्चों के लिए ये ऑब्जर्वेशन रखना है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी स्किल्स में या तो फिर कौन सी एबिलिटी में बहुत अच्छा है, और उस हिसाब से उनकी जो भी प्लस पॉइंट्स है उनको हम हमारे इंस्ट्रक्शनल अप्रोच में यूज कर रहे हैं, right? तो वो एक चीज हो गया। अभी यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रहने वाला है कि हमारी तरफ से भी बहुत सारी चीजें हम बच्चों को देने वाले हैं, प्लस स्टूडेंट भी उनकी तरफ से बहुत सारी चीज हमें देने वाले हैं। तो अगर जितना ज्यादा रेसिप्रोकल नेचर रहेगा क्लासरूम का, उतना ज्यादा लर्निंग हमारा फ्रूटफुल रहने वाला है। सो ये चीज हमें कंसिडर करनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरी चीज इज देयर इंटरेस्ट एरियाज, उनके क्या क्या इंटरेस्ट है। शायद कोई बच्चे को ऐसा होगा कि मुझे तो स्टोरीज सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, या तो फिर अगर ये चीज स्टोरी के फॉर्म में मेरे पास आए तो मुझे जल्दी से समझ में आएगा। कोई स्टूडेंट को ऐसा है कि अच्छा इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे जल्दी से याद रहेगा,
सो ये जो भी उनके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट एरियाज है, उनको भी हम लोग किस तरीके से केटर करेंगे और उनकी बेसिस पे हम लोग किस तरीके से अप्रोच बना रहे हैं, तो हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलेगा। प्लस उनके स्ट्रेंथ्स, जैसे हमने देखा कि उनकी जो एबिलिटीज की हमने बात की, सिमिलरली उनके स्ट्रेंथ्स कौन सी एरिया में वो स्ट्रेंथ, या तो फिर कौन सी चैप्टर में, या तो फिर कौन से सब्जेक्ट में उनकी ज्यादा अच्छी ग्रिप है, और वो हम किस तरीके से एज टीचर्स उन बच्चों का मदद ले सकते हैं, राइट। सो दीज आर मेजर एरियाज हम बोल सकते हैं कि जब भी हमें हमारा इंस्ट्रक्शन अप्रोच प्लान आउट करना है। इसके अलावा डू यू थिंक और कोई चीज शायद छूट रही है, या तो फिर और कोई चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एनी टीचर? Okay, Sangeeta ma'am is saying no. Okay, so let's just move ahead. अभी हम लोग बिफोर वी गो ऑन टू स्किल्स एंड हमारी जो भी स्ट्रेटजीज है उसको डीप में डिस्कशन करने से पहले लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी सेंटेंस लिखा है, दैट इंटर रिलेटेड सेट ऑफ सिस्टम्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गवर्न हाउ वी टीच। तो ये जो भी 4 अलग अलग हमें सर्कल्स दिख रहे हैं, मेथड्स, मॉडल्स, स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स, ये चारों 4 इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। और ये चारों जो है वो पर्टिकुलर सिस्टम्स की यहाँ पे बात करी है कि ये चारों 4 सिस्टम इंटर रिलेटेड है। मॉडल्स के जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बिहेवियरल, एक्चुअली इसका मैं आपको डीपली नहीं समझा पाऊंगी, बट आई एम गोना शेयर द आर्टिकल, ये जहाँ से भी हमने इसका मोटिवेशन लिया है या तो फिर जहाँ से भी हमने ट्राई किया है समझने का, तो आई एम गोना सेंड यू दैट आर्टिकल। वहां पे आप मॉडल्स के बारे में डीप में सारी चीज समझ सकते हैं। तो ये जो भी हमारे मॉडल्स के बारे में बात करें, तो ये मॉडल्स अगर हमें बिहेवियरल मॉडल बच्चों में अप्लाई करना है तो उसके लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं? अच्छा, इंटरैक्टिव यूज कर सकते हैं, तो वो हो सकता है इंटरैक्टिव, यानी जो भी दो स्टूडेंट के बीच में, या तो फिर स्टूडेंट और क्लास के बीच में, या तो फिर टीचर और क्लास के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रही है वो। उसके बाद अगर हमें बिहेवियरल मॉडल में ही कोई मेथड यूज करनी है, तो उसके लिए हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग ले रहे हैं कि जहाँ पे हम भी बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, बच्चे भी हमें कुछ सिखा रहे हैं, और बच्चे एक दूसरे को भी कुछ सिखा रहे हैं, सो दैट वी आर जस्ट टेकिंग इनटू बिहेवियरल मॉडल। उसके बाद अगर स्किल्स की बात करें, तो जैसे हमने इंटरैक्टिव स्ट्रैटेजी ली, हमने मेथड में कोऑपरेटिव लर्निंग लिया, और अगर स्किल्स की बात करें तो वहां पे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन किन का? तो स्टूडेंट्स का ही। हमने स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया, वो उन्होंने खुद ने समझा कोऑपरेटिव लर्निंग से, और उसके बाद इंटरैक्शन किया, जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अप्लाई की, तो वहां पे उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करके एक दूसरे को समझाया और फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। तो वो क्या हो गया? पूरी हमारी स्किल्स हो गई, राइट। तो ये जो भी मॉडल हम लोग फॉलो करने वाले, या तो फिर यहाँ से जो भी सारी चीज हम लोग फॉलो करने वाले, वो सारी चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन में है। और ये हमें कहाँ लेके जाती है? तो हम किस तरीके से हमारा टीचिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो यस, स्ट्रैटेजीज में जो हमने डायरेक्ट की बात की, यानी डायरेक्ट टीचिंग हमारा हो रहा है, इनडायरेक्ट यानी हम बच्चों को कुछ एक्टिविटीज वगैरह दे रहे हैं और उससे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। हमारा मेन एम हमने डिसाइड कर लिया कि अच्छा बच्चों को ये पर्टिकुलर टॉपिक आना चाहिए, बट उसका हम सीधा सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, बट कुछ एक्टिविटी ऐसी दे रही है कि जिससे वो जो भी थीम हमने डिसाइड की थी कि बच्चों को आनी चाहिए, वो इनडायरेक्टली उनको समझ में आ रहा है। उसके बाद इंटरैक्टिव हमने ऑलरेडी देखा। एक्सपेरिमेंटल यानी वो खुद से कुछ ना कुछ अलग अलग वो पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजीज इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टडी, यानी हर एक बच्चे को हमने या तो फिर क्लास में कॉमनली एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने दे दिया कि अच्छा ये वाले टॉपिक पे आपको ये सारी चीजें देख के आना है या तो फिर करके आना है। सो इंडिपेंडेंटली उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने खुद से कहीं ना कहीं से पढ़ा, कहीं ना कहीं से जाना, और उस हिसाब से उन्होंने सीखा। तो ये हो गया डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। और अगर मेथड की बात करें तो लेक्चर मेथड से हम लोग टीचिंग करते हैं, सिमुलेशंस हम बच्चों को देते हैं, केस स्टडीज होती है, लर्निंग कॉन्ट्रास्ट होते हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग हमने ऑलरेडी देखा, डिबेट्स हो गया, इंक्वायरी हो गया, तो ये सारे हो गए मॉडल्स। अगर स्किल्स की बात करें तो डायरेक्शन गिविंग, हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और पर्टिकुलरली कौन से डायरेक्शन में उनको आगे बढ़ना है, उनका जो भी कोई डाउट है, वो डाउट अगर उनको सॉल्व करना है तो हम सिर्फ उनको बता रहे हैं कि अच्छा आप ये सारी चीजें करो तो आप ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर पाओगे। तो इन अ वे हम लोग बच्चे को एक रास्ता दिखा रहे हैं, उनको जो भी इंडिपेंडेंटली स्टडी करना है उसके लिए।
उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, तो एज ए टीचर हम ही डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, हमने क्लास में उनको कुछ दिखाया, जैसे कि यूजुअली हम लोग फिजिक्स लैब में करते हैं या तो फिर केमिस्ट्री लैब में करते हैं कि बच्चों को हमने एक्सपेरिमेंट पहले दिखा दिया, उसके बाद बच्चे खुद से वो सारी चीज कर रहे हैं। उसके बाद स्किल्स में किस तरीके के हम लोग क्वेश्चन बच्चों को पूछ रहे हैं, उसके बाद प्लानिंग में हम लोग किस तरीके से ये जो भी थीम हमने सोची है कि अच्छा ये चैप्टर आज क्लास में पढ़ाना है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या चीज पढ़ाने वाले हैं, फिर आगे कौन सी चीज लेके जाने वाले हैं। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ ये चैप्टर बच्चों को कितना आया उसका, और उनको अगर कोई चीज में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसका इवेल्युएशन। और उसके बाद प्रेजेंटिंग, हम किस तरीके से जो भी लेसन्स पढ़ा रहे हैं उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हर एक ऑफ कोर्स सेक्शन में अलग अलग तरीके से फॉलो होने वाली। हायर सेकेंडरी की बात करें तो हायर सेकेंडरी में शायद लार्जर ग्रुप में सारी चीज फॉलो कर सकते हैं, बट अगर प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो प्राइमरी सेक्शन में 3 लोगों का या तो फिर 5 लोगों का ग्रुप बना के अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम लोग फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सारी चीज कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन में है। तो स्ट्रैटेजीज अगर हम कोई भी डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंट स्टडीज बच्चों को करनी है या तो फिर देना है, तो उसके लिए शायद हमारा पहले तो उनको इंस्ट्रक्शनल लेक्चर मेथड से दे सकते हैं या तो फिर उनको केस स्टडी प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज हाउ वी आर कनेक्टिंग स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स। और फिर ये कंप्लीट करने के बाद बच्चों को पूरे क्लास के सामने उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या सीखा, वो सारी चीज प्रेजेंट करनी। तो इन अ वे दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग कि उन्होंने क्या क्या चीज सीखी। सो दैट इज हाउ वी कैन से कि स्ट्रैटेजीज, मेथड्स, स्किल्स और मॉडल्स, इन सारी चीजों को हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, राइट। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव अहेड। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, टूल्स और स्किल्स हमारे पास अवेलेबल है उनसे। सो हमारे पास फर्स्ट जो अवेलेबल है वो है वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो स्पेसिफिकली वैसे तो हम सारे अलग अलग एज ग्रुप के साथ ये यूज कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम स्पेसिफिकली प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी इसमें हमें करना क्या है, तो स्टूडेंट्स को हमने 2 सिमिलर पिक्चर्स दे दी। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि अच्छा आपको डिफरेंसेस ढूंढने हैं, सिमिलरली हमने बच्चों को ऐसे कुछ पिक्चर दे दिए जहाँ पे उनको डिफरेंसेस देखना है और उन दोनों में कौन सी सिमिलर चीजें हैं वो उनको देखनी है। तो जो भी ब्लू कलर का सर्कल आपको दिख रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट 1 की यूनिक एस्पेक्ट्स आ गए, और ऑब्जेक्ट 2 यानी जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट 2 के सारे यूनिक स्पेसिफिकेशंस उनको लिखने हैं। और जो भी इंटरसेक्शन दोनों का हो रहा है वहां पे बच्चों को कौन से सिमिलर पॉइंट्स दोनों पिक्चर में या तो फिर दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में उनको लग रहे हैं वो उनको मर्ज आउट करना है। अभी चलो ये तो शायद प्राइमरी सेक्शन में हमारा काफी इजी हो जाएगा यूज करना, बट यहाँ पे जो भी हायर सेकेंडरी के टीचर्स अवेलेबल है हमारे साथ, तो वो मुझे एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हमें हायर सेकेंडरी में अप्लाई करना है तो हम कौन से टॉपिक में ये चीज अप्लाई कर सकते हैं? हायर सेकेंडरी के हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स या तो फिर हमारे जो भी चैप्टर्स वगैरह हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स या तो फिर वो सारे अलग अलग चैप्टर्स में ये वेन डायग्राम यूज करना है तो कैन वी यूज समवेयर एनीवेयर? टीचर्स वी नीड टू इंटरेक्ट, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा ये। Khyati, if possible, give example of one of topic. So maybe. ओके, अनु मैम शायद आप कुछ बोल रहे थे। ओके, सो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आई फील अलग अलग हायर सेकेंडरी के अगर जो डिफरेंट चैप्टर्स हमारे पास है तो शायद हम फिजिक्स और मैथ्स के बीच में ये वेन डायग्राम शायद बच्चों को यूज करवा सकते हैं। या जब फिजिक्स में आपके कौन से यूनिक कॉन्सेप्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, मैथ्स में कौन से यूनिक कॉन्सेप्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और अगर फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग देखें तो दोनों में कौन सी सिमिलर जो भी काइंड ऑफ डिफरेंट मेथड्स है सॉल्व करने के लिए, या तो फिर जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है जो दोनों में कॉमन है,
जैसे कि शायद मैथ्स में हम लोग ग्रेविटी भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे, प्लस फिजिक्स में भी ग्रेविटी कहीं ना कहीं आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन आई गेस यूज मैथ्स एंड फिजिक्स। ये तो 2 चैप्टर का हो गया, बट अगर स्पेसिफिक एक ही चैप्टर के अंदर बात करूं तो यहाँ से मुझे कोई एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपसे? नॉट जस्ट चलो हायर सेकेंडरी, लेट्स जस्ट हैव इट फॉर ओपन। तो अगर प्राइमरी सेक्शन के कोई टीचर को कोई एग्जाम्पल शेयर करना है, सेकेंडरी के कोई एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, प्लीज। कोई भी ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जहाँ पे ये सारी चीज हम लोग फॉलो कर सके? मैथ्स में मैडम आता है स्पीड, मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं स्पीड के, और वो साइंस में भी अप्लाई होते हैं। तो उसमें जो फॉर्मूला होते हैं वो दोनों में कभी कभी जो है अप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए हम जो स्पीड वगैरह क्वेश्चन से होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स और साइंस स्पीड दोनों की। राइट, दैट्स सो ट्रू सर। तो शायद हम लोग मैथ्स एंड साइंस का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, प्लस केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी चीज हमारे अंदर जो डाइजेशन की हो रही है या तो फिर। यस मैम। ह्यूमन डाइजेशन में जैसे स्टमक में जो भी डाइजेशन के रिएक्शंस वगैरह हैं, अल्कली अल्कलाइन एनवायरनमेंट वगैरह, वो केमिस्ट्री में भी आता है और बायो में भी आता है। सेम इन फिजिक्स आल्सो मोशन में जो इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने का तरीका पूरा टोटल वो मैथ से रिलेटेड है, तो हम ऐसे कनेक्टेड कर सकते हैं। राइट मैम। यस, एनी अदर एग्जांपल? Okay, let's just move ahead towards our next strategy. Just a second. Now, here we have a video too. Of course, it was quite easy to understand कि बच्चों को हमें पहले जो भी चैप्टर या तो फिर yes, जैसे धर्मिष्ठा मैम बता रही है कि अच्छा आपका वेन डायग्राम का एग्जाम्पल है कि जीके और साइंस इन प्राइमरी सेक्शन। ओके, अगर और थिंक पेयर शेयर की हम लोग बात करें तो थिंक पेयर शेयर में भी कोई भी चैप्टर में या तो फिर कोई भी एज ग्रुप में कोई भी क्लासरूम में ये सारी चीज हम फॉलो कर सकते हैं। व्हाट वी नीड टू हैव इन माइंड कि बच्चों को क्लियरली हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि अच्छा सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद उसके ऊपर आपके ओपिनियंस बिल्ड ऑन करने हैं या तो फिर उसको अच्छे से समझना है, उसके ऊपर टाइम लेना है सोचने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे वीडियो में मैम ने बोला कि उनके बाजू में जो भी बैठे हैं उनके साथ उनका पेयरिंग कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली क्योंकि शायद हो सकता है कि हायर सेकेंडरी या तो फिर सेकेंडरी सेक्शन में बच्चे उनके दोस्तों के साथ ही बैठते हैं, तो दोस्तों के साथ वो शायद कितना जनरल डिस्कशन करेंगे या तो फिर दूसरी बात के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो शायद हमारा जो मेन पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा बच्चों की आप ही पैर बना दो कि जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा ये दोनों शायद थोड़े से कम इंटरैक्टिव है एक दूसरे के साथ, तो उनका पैर बना दिया, और दैट इज हाउ वी कैन यूज थिंक पेयर एंड शेयर। तो सबसे पहले हमने बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया, उनके ऊपर उनको समझना है, पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम लेना है, सोचना है, उसके बाद उनके जो भी पेयर में कोई मेंबर होगा उनके साथ शेयर करना है कि उन्होंने क्या क्या सीखा। अभी आपको क्या लगता है कि इससे बच्चों को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? थिंक पेयर शेयर अगर हम लोग करेंगे तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं, नॉट एन इश्यू। इंक्रीज नॉलेज। यस, एक तो उनका नॉलेज खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है, दैट्स ट्रू। कंसंट्रेशन भी उनका बढ़ रहा है, ट्रू। बिहेवियर चेंज हो सकता है मैम, उनका फ्रेंडली बिहेवियर हो सकता है। राइट, हर एक जो भी अलग अलग स्टूडेंट्स अवेलेबल है क्लासरूम में उनके साथ अगर इंटरेक्शन करेंगे तो उनका रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा एक दूसरे के साथ, दैट्स सो ट्रू। थिंकिंग स्किल डेवलपमेंट, उनका फियर भी खत्म होगा मैम। राइट, उनका फियर खत्म होगा, स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है उनकी, कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड ऑन हो रहा है। उसके बाद उनके जो ओपिनियंस है वो ओपिनियन को हम किस तरीके से वर्बलाइज कर सके, तो वो भी उनको हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं थिंक पेयर शेयर में। यस, दे बिकम वेरी कोऑपरेटिव, एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उन्होंने जो भी समझा है वो जब हम लोग सिखाते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी स्किल्स चाहिए या तो फिर हम जो भी सीखे हैं उसको शेयर करने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी स्किल्स चाहिए, तो वो भी फिर बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं कि किस तरीके से हमें एक्सप्रेसिव होना है,
किस तरीके से हमारी लैंग्वेज हमें यूज करनी है, किस तरीके से कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना है, सो दैट द अदर स्टूडेंट कैन इजीली अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। तो यस, थिंक पेयर एंड शेयर हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखें, यस, जैसे उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड ऑन हो रहा है। फिर हमारे पास दूसरी स्ट्रैटेजी वो है सर्कल टाइम। अभी सर्कल टाइम शायद आप में से बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे, प्राइमरी सेक्शन में काफी ज्यादा शायद फॉलो होता होगा, बट हायर सेकेंडरी में डू वी फॉलो सर्कल टाइम? अच्छा, व्हाट इज एग्जैक्टली सर्कल टाइम? सर्कल टाइम क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन मैम। राइट, इन अ वे वी कैन से कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है बच्चों का, दैट्स सो ट्रू, राइट। सो सर्कल टाइम जैसे प्री प्राइमरी सेक्शन में हर बार यूजुअली टीचर प्ले सेक्शन उसके बाद आई मीन प्ले के बाद बच्चों को कराती है क्लासरूम के अंदर आने के बाद। सो प्ले में बच्चों की बॉडी इज वेरी वेरी एक्टिव बन जाती है, तो अभी वो जो एक्टिवनेस उनकी बॉडी में है तो उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए सर्कल टाइम होता है, राइट। तो यस, जैसे अपर्णा मैम भी बोले कि एक्टिव लर्निंग भी बच्चों का होता है, ग्रुप डिस्कशन हम बोल सकते हैं, बट इसको हम सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सेक्शन में बात करें तो वहां पे हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल टाइम स्पेसिफिकली प्राइमरी सेक्शन में भी अगर हमें अप्लाई करना है तो उनके हमें थोड़े से रूल्स देखने पड़ेंगे, देखने होंगे, सो दैट सर्कल टाइम की जो भी मेन बेनिफिट है वो उसको हम और ज्यादा अच्छे से बच्चों को दिला सके। सो सर्कल टाइम में क्या होता है कि एक तो हमारे पास एक ओपन स्पेस होनी चाहिए हमारे क्लासरूम के अंदर, और सब स्टूडेंट्स को एक ही सर्कल बना के अंदर अंदर बैठना है, एक ही सर्कल बना के क्लासरूम के अंदर जमीन पे बैठना है विद टीचर, टीचर भी उन्हीं के साथ जमीन पे बैठेंगे। और फिर शायद ये चीज फॉलो हो सकती है क्लास आई मीन स्कूल के स्टार्टिंग में, या तो फिर उनका जो प्ले सेक्शन हो गया, आई मीन प्ले उनका कंप्लीट हो गया, आउटडोर प्ले, उसके बाद जब भी वो वापस अंदर आ रहे हैं तो उनके बाद वापस हम लोग उनके साथ सर्कल टाइम करें। तो सर्कल टाइम में क्या होता है कि सबसे पहले जनरल, आज अगर किसी ने न्यूज पढ़ा है तो न्यूज का शेयरिंग हो रहा है, आज का वेदर कैसा है तो वेदर शेयरिंग से हो रहा है, और फिर धीरे धीरे हमारा कल कैसा था तो कल थोड़ा सा रिकॉल किया, उसके बाद आज क्या क्या चीजें करने वाले तो शायद उनका थोड़ा सा हमने डिस्कशन कर लिया। जैसे साहब प्राइमरी सेक्शन में या तो प्री प्राइमरी सेक्शन में सारी चीज आई मीन सर्कल टाइम फॉलो कर सकते हैं, बट अगर हम लोग को सेकेंडरी सेक्शन में या तो फिर हायर सेकेंडरी सेक्शन में फॉलो करना है तो हमारे पास शायद इतना स्पेस अवेलेबल नहीं होगा, फ्री स्पेस, ओपन स्पेस, कि जहाँ पे हम बच्चों को क्लासरूम के अंदर फ्लोर पे बिठा सके या तो फिर हम भी खुद उनके साथ बैठ सके। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास अगर बेंचेस अवेलेबल है तो बेंचेस पे हमने एक बड़ा सा बच्चों को बोल दिया कि ऐसे बैठ जाओ कि आप सब एक दूसरे को फेस कर सके, और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल टॉक उनके साथ भी सेम चीज हमें करनी है कि अच्छा आपने आज किसी ने अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ा है, कोई न्यूज़ पढ़ी है तो उनको हम शेयर करेंगे, अच्छा किसी ने वेदर के बारे में कुछ देखा है तो वो शेयर करेंगे, अच्छा किसी ने अगर कल ऑनलाइन कुछ नया चीज देखी है तो उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, या तो फिर हमने कल जो भी सारी चीज पढ़ी थी उसको अपने रियल लाइफ में कहीं अप्लाई की हो या तो फिर कहीं आपने ऑब्जर्व की हो तो उसके थोड़े से एग्जाम्पल्स वगैरह डिस्कशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे हमने लास्ट थिंक पेयर शेयर में भी देखा कि हर एक बच्चा अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, उन्होंने क्या खुद से सीखा वो सारी चीज शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज भी यहाँ हम बच्चों को एक ओपन स्पेस दे रहे हैं कि आपको आपके अंदर की जो भी चीजें बोलनी है वो आप बोल सकते हैं। सो यस, सर्कल टाइम हेल्प्स अस इन दिस वे विथ ईच डिफरेंट सेक्शंस। उसके बाद अगर हम KWL चार्ट की बात करें तो जब भी हम लोग कोई भी अलग अलग सेक्शन में कोई नया चीज बच्चों को इंक्लूड करा रहे या तो फिर बच्चों को सिखा रहे हैं, ओके, तो जैसे राजलक्ष्मी मैम बोल रहे हैं कि सर्कल टाइम में वो कार्टून के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली गुड थिंग एक्चुअली। उसके बाद अगर हायर सेकेंडरी सेक्शन की बात करें तो उनके साथ हम लोग जो भी मूवीज वगैरह आ रही है जो शायद उनके लिए उनके लेसन्स बेनिफिशियल हो सकते हैं तो उनके ऊपर भी हमारे सर्कल टाइम में डिस्कशन कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और मूवीज ऑफकोर्स है कि सब बच्चों को देखना अच्छा लगता है, तो या तो फिर उन्होंने जो भी कोई मूवी देखी हो उसमें से हम लोग क्या लेसन ले सकते हैं, क्या सारी चीज सीख सकते हैं, उसका भी डिस्कशन हो सकता है, राइट। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स KWL चार्ट। KWL चार्ट यानी नो, वांट टू नो एंड ऑलरेडी लर्न। तो अभी ये एक बच्चों से हमें क्रिएट करवाना है उनकी नोटबुक में, जब भी हम लोग कोई नया चैप्टर बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हर एक डिफरेंट सेक्शन में,
प्राइमरी सेक्शन में हो तो उस हिसाब से, सेकेंडरी में तो उस हिसाब से, और हायर सेकेंडरी में है तो उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो टॉपिक के नाम में हमने लिख दिया कि अच्छा कौन सा टॉपिक है, तो मैथ्स में ये वाला चैप्टर। तो उसमें उनको क्या चीज ऑलरेडी मालूम है, तो सबसे पहले इंडेक्स में सारी चीजें अवेलेबल होती है। तो सब बच्चों को हम बोल दें कि आप इंडेक्स पढ़ लो, उसके बाद आपको क्या लगता है कि इसमें से आपको कौन सी चीज आती है, तो वो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखना है कि व्हाट आई नो अबाउट दिस टॉपिक। उसके बाद व्हाट आई वांट टू नो अबाउट दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक है उसमें मुझे क्या क्या चीज सीखनी है। तो ये दो हमने बच्चों से सबसे पहले भरवा दिए। और अभी जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमने बच्चों से वापस ये सेम चीज निकलवाई और उनको थर्ड बॉक्स भरने के लिए बोला कि अच्छा अभी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमने पूरा एक वीक जो भी सारी चीजें सीखी, तो उसमें से आपने नई नई कौन सी चीज सीखी उसकी हमें पूरी लिस्ट बनानी है। तो ये हमें हेल्प करेगा कि अच्छा हमें अगर किसी बच्चे का कुछ देखना है कि अच्छा इनको ये सारी चीज आती है, तो उनको हम शायद थोड़ा सा कम फोकस में रखें। अगर एवरेज पूरे क्लासरूम में देखा जाए, अगर सारे बच्चों को पर्टिकुलर चीजें आ रही है तो उन पे शायद हम थोड़ा सा कम फोकस रखेंगे, और बाकी जो भी सारी चीज उनको सीखनी है, तो सीखने में भी कौन सी नई नई चीज हो सकती है राइट फ्रॉम द चैप्टर, तो उन पे हम कितना ज्यादा फोकस करेंगे वो सारी चीज एज टीचर हम खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अल्टीमेटली अगर थर्ड बॉक्स हम बच्चों को भरवा देंगे, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या तो फिर एग्जामिन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि बच्चों को ये पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सी चीज उन्होंने सीखी और कौन सी चीज पे अभी भी थोड़ा सा उनको खुद को काम करने की जरूरत है। सो KWL चार्ट will definitely help each and every different section that we cater to, right? So this is how we can use KWL chart. यहाँ तक जितनी भी स्ट्रैटेजीज हमने देखी, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई एग्जांपल अगर आपको शेयर करना हो? हेलो मैम। यस मैम। हाँ मैम, ये KWL चार्ट जिसके बारे में आपने अभी डिस्कस किया, तो ये इंडिविजुअल करवाना है हर एक स्टूडेंट से, या फिर हम पूरे क्लास के लिए भी करवा के लगा सकते हैं, क्लास में कर सकते हैं? नो मैम, दिस वुड बी इंडिविजुअली होगा तो हर एक बच्चे को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। ओके। यस, किसी को और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अगर नहीं है देन लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जैसा हमने रिसोर्सेज वाले प्रेजेंटेशन में भी देखा था वर्ड वॉल, तो वर्ड वॉल ऑलरेडी हमने एग्जांपल देख लिया है कि हम लोग क्लासरूम के अंदर ही डिफरेंट शायद हमारे वर्ड्स के ऊपर रिसोर्सेज बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो ये तो हो गया चलो स्पेलिंग्स वगैरह के लिए ये जो एग्जांपल है। बट सिमिलरली जैसे उस दिन भी हमने डिस्कशन किया था कि हायर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम कैसी चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि वर्ड के ऊपर हमने जो KWL चार्ट अभी जैसे मैम ने पूछा कि एक तो इंडिविजुअली हमें अप्लाई करना है, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर हम पूरे क्लास को जनरली इंस्ट्रक्ट करके पूरे क्लास में अगर हमें वो पब्लिश करना है या तो फिर वो स्टिक करना है क्लास में कि चलो एवरेजली सारे स्टूडेंट को ये सारी चीज आ रही है, उसके बाद उनको ये सारी कॉमन चीजें सीखनी है, सो दैट इज हाउ KWL चार्ट को भी हम वर्ड वॉल पे वॉल के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ सारे बच्चों को एवरी डे जब भी वो क्लासरूम के अंदर एंटर होंगे तो उनको अच्छा आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर में इतनी चीजें हो चुकी है, तो उसको हम टिक मार्क भी करते जा सकते हैं, और इतनी चीजें सीखनी बाकी है, तो ये सीखनी बाकी है उसमें हम हमारी तरफ से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज हम लोग वर्ड पे वॉल पे डिस्प्ले कर सकते हैं या तो फिर बच्चों के लिए इजी टू एक्सेस करवा सकते हैं। तो दैट इज हाउ हम लोग हमारी क्लासरूम वॉल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चनिंग टेक्निक। अभी क्वेश्चनिंग ये जो है हर बार हम लोग कोई ना कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, बट हमारा जो क्लासरूम है जितना ज्यादा हम लोग क्लासरूम में टाइम स्पेंड करते हैं उतना ज्यादा हमें आइडिया आ जाता है कि हमारे क्लासरूम में किन तरीके के अलग अलग स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जब भी हम लोग कोई भी चैप्टर या तो फिर कुछ भी चीज बच्चों को सिखा रहे हैं और वहां पे अगर हमें क्वेश्चंस बच्चों को पूछना है, तो हमारे क्वेश्चंस पूछने के लिए भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछ सकते, बट उसकी भी एक स्ट्रैटेजी एज अ टीचर हमें फॉलो करनी है कि एक तो हमारे जो भी इनिशियल क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स को आते हो उसके जवाब, सो दैट उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड ऑन हो और उनको क्लासरूम के अंदर बोलना है हाथ खड़ा करके तो भी वो इजीली बोल सके, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वुड बी नोइंग दैट पर्टिकुलर आंसर। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग हमें करना है कि ओके संगीता मैम जस्ट अ सेकेंड,
आई एम जस्ट फिनिशिंग क्वेश्चनिंग फर्स्ट, उसके बाद वापस हम लोग वर्ड वॉल पे जाते हैं, राइट? तो क्वेश्चनिंग, हाँ, क्वेश्चनिंग टेक्निक में हमें स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। वो है स्टार्टिंग विथ द इजियर क्वेश्चंस कि जिसके आंसर सबको आते हैं, so that each and every student can participate into answering those particular questions. स्टार्टिंग उससे करना है, उसके बाद धीरे धीरे उसका कॉम्प्लेक्सिटी हमें बढ़ाते जाना है कि सबसे पहले थोड़े से इजी क्वेश्चन हो गए, उसके बाद चलो एवरेजली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसके आंसर पता हो वैसे, उसके बाद हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को मालूम है वैसे टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछने हैं, और फिर कॉग्निटिव लेवल भी हमें उनका बिल्ड ऑन करना है। जो हम क्वेश्चंस बच्चों को पूछ रहे हैं उसका एक पर्पस ये है कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, यानी उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए हमें उनको क्यूरियोसिटी बिल्ड ऑन करनी पड़ेगी विद डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। तो अल्टीमेटली हमारा लास्ट स्टेज होगा कि जहाँ पे हम बच्चों को थोड़े से हैवी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंडरी सेक्शन में शायद हमारे फ्रीडम की स्टोरी आती है, तो फ्रीडम की स्टोरी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कि जो शायद सबको मालूम है कि किन्होंने हमें फ्रीडम दिलाया, मतलब किनका सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल था, तो शायद ये सारे स्टूडेंट्स को आता होगा। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, उसका क्या रिजल्ट हमें मिला था, तो ये शायद सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा। और फिर मेनली थोड़े से पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तरफ, या तो फिर हमारा जो सोशल साइंस में फ्रीडम के ही चैप्टर में जो भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो उसके अलग अलग क्वेश्चंस हम बच्चों को पूछ सकते हैं। सो दिस इज हाउ हमारे जो भी क्वेश्चंस हम बच्चों को पूछ रहे हैं उसकी अलग अलग रेशियोज हमें रखने हैं कि सबसे स्टार्टिंग विद दी इजियर क्वेश्चंस, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट, और लास्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो दैट वो बच्चे खुद से एक्सप्लोर कर सके और उनको जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने बात की तो वो भी अच्छे से डेवलप हो पाए, राइट? तो क्वेश्चनिंग हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं ना। मूविंग टुवर्ड्स अगेन हमारा जो वर्ड वॉल था, तो संगीता मैम वर्ड वॉल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से सेक्शन में पढ़ा रहे हैं अभी? प्राइमरी सेक्शन में। ओके, सो प्राइमरी सेक्शन में तो हमारे पास वर्ड वॉल पे बहुत अलग अलग चीजें अवेलेबल है। जैसे कि आप यहीं पे देख सकते हैं कि अगर हमने बच्चों को अल्फाबेट्स सिखा दिए तो अल्फाबेट्स से ए से कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहे तो उनका बच्चों को स्टिक करना है यहाँ पे, बी से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। सिमिलरली अदर जो भी लेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है उनसे कौन से वर्ड्स बच्चे खुद क्रिएट करके या तो फिर उन्होंने कहीं पढ़े हो तो वो स्टिक करें। सो दिस इज हाउ हम बच्चों को इन अ वे विजुअल रिप्रेजेंटेशन करा रहे हैं, उन्होंने कौन से नए शब्द सीखे। अभी सारे बच्चे अगर यहाँ पे अलग अलग शब्द सीख के स्टिक करेंगे तो बाकी सारे बच्चे भी वो पर्टिकुलर शब्द सीखने वाले हैं। सो वर्ड वॉल हमें इस तरीके से यूज आ सकती है। संगीता मैम, आई होप यू आर क्लियर नाउ। मैम सेकेंडरी सेक्शन में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सेकेंडरी सेक्शन में भी सिमिलरली अभी वर्ड वॉल शायद हम यूज नहीं कर पाएंगे, बट जैसे हमने फ्रीडम की बात की, फ्रीडम वाला जो चैप्टर होता है सोशल स्टडीज में, तो शायद हमने वॉल पे ऐसा एक पूरा चार्ट या तो फिर ऐसा पूरा बॉक्स जैसा बना दिया और वहां पे फ्रीडम के जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो शायद हमें एग्जामिनेशन में आने की संभावना है या तो फिर उनको बच्चों को याद रखना इज इम्पोर्टेंट, तो वैसी सारी डेट्स का हमने लिस्ट बना लिया कि अच्छा 26 जनवरी को ये हुआ था, उसके बाद फरवरी में ये हुआ था। जो भी मेन इवेंट्स हम फ्रीडम की चैप्टर में बच्चों से डिस्कशन करवाने वाले हैं तो उनके जो भी पर्टिकुलर डेट्स वगैरह है या तो फिर उनके जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स है तो वो कॉन्सेप्ट का हम बच्चों के लिए डिस्प्ले कर सकते हैं वॉल पे। और सिमिलरली अगर हायर सेकेंडरी सेक्शन की बात करें तो वहां पे तो जैसे हमने उस दिन पे डिस्कशन किया था कि अगर मैथ्स वगैरह है या तो फिर फिजिक्स वगैरह है तो उसके हमने जो भी फॉर्मूलाज है तो फॉर्मूलाज बच्चों के लिए स्टिक कर दिए, बट दैट शुड बी रिमूवेबल अगेन। अदरवाइज हमने लास्ट टाइम भी जो डिस्कशन किया था कि शायद एग्जामिनेशन के टाइम बच्चे चोरी कर सकते हैं उससे, तो जस्ट टू अवॉइड दोज प्रॉब्लम्स वो रिमूवेबल होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम सेकेंडरी हायर सेकेंडरी अलग अलग सेक्शंस में भी ये सारी चीजें आई मीन वर्ड वॉल फॉलो कर सकते हैं। अभी आपको क्लियर हुआ मैम? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, यस, जो जैसे भाग्यश्री मैम भी बोली है कि सोशल स्टडीज में भी अगर हमें टाइमलाइन पूरा क्रिएट करना है तो टाइमलाइन क्रिएट करके भी वो चार्ट हम हमारे क्लासरूम के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? सो नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी दैट इज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। अभी ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यानी बेसिकली बच्चे ग्राफिकली खुद से कुछ ना कुछ क्रिएट करें। यस धर्मिष्ठा मैम, आपको कुछ बोलना है?
we can use word wall as a word of the day, daily. Right. New words in a primary and secondary section also. True, ma'am. So जो भी नए वर्ड Newspaper, new words every day coming, so we can use this word wall. जैसे न्यूज़पेपर में न्यू वर्ड्स आपने कौन से ये किए, in proxy period we can use read the newspaper and write new words. Right, ma'am. Right. That's so true. उसके बाद अगर हम लोग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर की बात करें तो इसका यूज हम मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं, एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ये वाली स्ट्रैटेजी में बच्चों को खुद से आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम किसने क्रिएट की, और वो प्रॉब्लम को उनको पूरा डिस्क्राइब करना है। उसके बाद वो प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए कौन से डिफरेंट वेज हो सकते हैं, और फिर अगर मैंने ये वे अप्लाई किया तो इससे मुझे ये रिजल्ट मिला विच इज नॉट ट्रू। उसके बाद मैंने अगर ये वाला रास्ता चुना तो उससे जो मुझे रिजल्ट मिला वो थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा अभी भी मेरा आंसर परफेक्टली नहीं आ रहा है। उसके बाद तीसरा जो वे है उससे मैंने अगर ये सॉल्व करने की ट्राई की तो मुझे काफी अच्छे से वो सारी चीज आ रही है, या तो फिर उसका जो सोल्यूशन है वो काफी एक्यूरेटली मुझे मिल रहा है। सो दिस इज हाउ यहाँ पे हम बच्चों को ग्राफिक ऑर्गेनाइजर इस तरीके से यूज करवा सकते हैं कि दे नीड टू लिस्ट कौन से प्रॉब्लम, कोई भी चैप्टर बच्चा अगर पढ़ रहा है, जैसे कि सोशल स्टडीज की बात करें तो सोशल स्टडीज में अगर उन्होंने सिमिलरली, चलो लेट्स जस्ट टेक फ्रीडम वाला चैप्टर, तो फ्रीडम वाला चैप्टर उनका ये प्रॉब्लम है कि एक तो उनको जल्दी से उसके डेट्स वगैरह याद नहीं रहती है, तो ये प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स उनको देखना है कि ये जो मुझे डेट्स वगैरह याद नहीं रह रहा है वो मुझे क्यों याद नहीं रह रहा होगा, या तो फिर कौन से रीजन से मुझे नहीं याद रह रहा है। तो उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बना लिए। उसके बाद ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मेरे साथ, सॉरी वो तो उसी में आ जाएगा, बट अभी उनके वेज हमें लिखने हैं कि ये जो हमने डेट्स हमें नहीं याद रह रही तो उसके लिए हम कौन से वे यूज कर सकते हैं। चलो हम स्टोरीज यूज कर सकते हैं उसको याद रखने के लिए, या तो फिर जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता था तो पीरियोडिक टेबल में पूरी जो हीलियम है या तो फिर ऑक्सीजन, उसका जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो सीक्वेंस याद रखने के लिए भी एक सॉन्ग जैसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन टेक स्टूडेंट्स का खुद का प्रॉब्लम कि उनको ये जो भी सारी चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो कौन सी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, उसके बाद अगर उनके क्या कैरेक्टर्स है, उनको क्यों समझ में नहीं आ रही, उसके बाद अगर उनको समझना है तो हम कौन सी डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं एज टीचर्स, या तो फिर इंडिविजुअली स्टूडेंट कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं उसकी लिस्ट बना ली, और अगर ये वाली मेथड उन्होंने यूज की तो ये रिजल्ट मिला, वो वाली मेथड उन्होंने यूज की तो वो वाला रिजल्ट मिला, और तीसरी वाली मेथड यूज की तो ये वाला, और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि सबसे एक्यूरेटली कौन सी हमारी मेथड है और सबसे एक्यूरेट कौन सा रिजल्ट हमें मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज हम बच्चों को ग्राफिक ऑर्गेनाइजर से सिखा सकते हैं। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, दैट इज वर्ड वेब। वर्ड वेब भी हम लोग हर एक डिफरेंट सेक्शंस में यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी सेक्शन में जैसे कि वाटर, यहाँ पे जो एग्जांपल है तो वाटर के साथ साथ कौन सी दूसरी चीजें रिलेटेड है कि एक तो प्लांट्स को हमें वाटर देना होता है, वाटर का जो फॉर्मूला है दैट इज H2O, उसके बाद बारिश से हमें पानी मिलता है, ख्याति, ख्याति, यस एक्चुअली माय इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर यहाँ पे। यस यस, बीच में आवाज चली गई थी, नो प्रॉब्लम, यू मे कंटिन्यू। ओके थैंक यू। ओके सो सिमिलरली ये तो प्राइमरी सेक्शन का एग्जांपल हो गया, बट अगर हमें सेकेंडरी सेक्शन में लेना है सेम फ्रीडम वाले अगर चैप्टर की बात करें तो फ्रीडम वाले चैप्टर में गांधी जी हो गए, या तो फिर कौन से डे पे हमें फ्रीडम मिला था, या तो फिर उसमें कौन से मेजर प्रॉब्लम्स आए थे हमें फेस करने के लिए, उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था, ये सारी चीज हम बच्चों के लिए बच्चों से ही क्रिएट करवा सकते हैं, सो दैट वो जो चैप्टर उनको याद रखने का प्रॉब्लम हो रहा था या तो फिर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो ये हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं, राइट।
अगर इसका हायर सेकेंडरी का हमें कोई एग्जांपल लेना है तो कोई टीचर मुझे हायर सेकेंडरी का एग्जांपल दे सकता है? हेलो मैम। यस मैम। मैम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन चैप्टर में हम ये कर सकते हैं मैम, because there are different types of fractions are given, so we can do this world web. राइट। सो यस, हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में उस हिसाब से भी बच्चों से ये करवा सकते हैं। यस, लाइफ प्रोसेसेस में भी। बट मैम ये जो आप लाइफ प्रोसेसेस बोल रही है ना, इसके लिए हमारे पास एक और दूसरी मेथड है जिससे बच्चों को और ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। यस, प्लान किंगडम हो गया, या तो फिर बायोलॉजी में जो भी हम लोग प्लांट्स वाले चैप्टर पढ़ते हैं उसमें भी प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो वो भी हम बच्चों को यहाँ पे हायर सेकेंडरी वाले बच्चों को ये करवा सकते हैं वर्ड वेब, राइट? ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप्स यूज करना बहुत ज्यादा इजी है फॉर स्टूडेंट्स। उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो और ज्यादा इजी हो जाएगा, स्पेसिफिकली विद हायर स्टैंडर्ड्स। अभी अगर रिसेंटली हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो एज माँ फाउंडेशन हमने ही एक पूरा स्कूल्स वगैरह में सेशंस कंडक्ट किए थे कि जहाँ पे एग्जाम के टाइम पे अगर आपको सारी चीज रिवाइज करनी है विद इन स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम, तो तब आप कौन सी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। उसमें से हमने बच्चों से ये कॉन्सेप्ट मैप का भी डिस्कशन किया था, तो उसमें हम हर एक डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सेक्शंस हैं उन सबको ले सकते हैं। कि जैसे अगर हम लोग केमिस्ट्री का या तो फिर बायोलॉजी का कोई चैप्टर ले रहे हैं, डीएनए का, तो डीएनए वाले चैप्टर में मेजर क्या क्या चीजें हैं, तो उसका हमने सबसे पहले ग्राफ बना लिया। उसके बाद जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, कौन से मटेरियल से बना है, तो उसके लिए वापस बच्चों ने कुछ और कॉन्सेप्ट मैप में इंक्लूड कर लिया कि अच्छा चलो डीएनए का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो एग्जैक्टली मैम मुझे मालूम नहीं, अगर मैं कुछ गलत बोलती तो प्लीज बेयर विद दैट, बट डीएनए शायद बना है प्रोटीन से, काइंड ऑफ। तो दिस इज हाउ जो भी हम चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एज टीचर हमारा क्या ड्यूटी है कि हमें बच्चों को एक पर्टिकुलर टॉपिक देना है कि अच्छा आपको ये वाले टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट मैप क्रिएट करना है। अभी ये शायद आप अगर स्पेसिफिकली चैप्टर के एंड में करो हर एक बच्चों के साथ, या तो फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक के एंड में करो। अगर प्राइमरी सेक्शन में हम लोग बात करें तो प्राइमरी सेक्शन में पर टॉपिक करना वुड बी फार इजियर फॉर चिल्ड्रन टू रिमेम्बर थिंग्स। और अगर हायर सेकेंडरी की बात करें तो उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में पूरे चैप्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं। तो बीच में एक तो चैप्टर का नाम हमने लिखा है, उसके बाद चैप्टर में कौन से मेजर पॉइंट्स है, मेजर सेगमेंट्स है, वो बच्चों ने लिखे। उसके बाद वो सेक्शन के अंदर क्या क्या दूसरी दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि स्कूल में हम लोग कौन से लोगों के साथ काम करते हैं। तो एक तो टीचर होता है, हेड मास्टर होता है, हमारे हेल्पर होते हैं। फिर टीचर में भी कौन से हमारे टीचर है, तो अच्छा मिस्टर जो भी हमारे टीचर्स अवेलेबल है, तो ये हमारे टीचर हो गए, उसके बाद ये वाला टीचर हो गए, ये वाला टीचर हो गए। उसके बाद दूसरा अगर इसमें ही इंक्लूड करना है तो अच्छा ये सर मेरा कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो सर कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो मैम कौन सा सब्जेक्ट ले रही है। सो दैट इज हाउ वी कैन इंक्लूड कॉन्सेप्ट मैप्स। और अगर हायर सेकेंडरी की बात करूँ तो उनको अल्टीमेटली जब भी उनका रिविजन पीरियड होगा या तो फिर जब भी एग्जाम उनके नजदीक आएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट मैप उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि उनके पास पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही पेज के ऊपर अवेलेबल है और सिर्फ उनको कुछ नहीं करना है, वो देखना है और उनको ऑटोमेटिक वो सारी चीज रिकॉल हो जाएगी। सो कॉन्सेप्ट मैप्स डेफिनेटली हेल्प अस हैव मोर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज हमारा जो रिमेम्बरिंग का पीरियड होता है तो वो भी हमारा फिर ज्यादा हो जाता है। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैप्स इन डिफरेंट सेक्शंस, राइट? उसके बाद मूविंग अहेड, अभी हमें अगर जिगजॉ की बात करें तो जिगजॉ इज अ स्ट्रैटेजी। ये भी हम एक्चुअली हर एक डिफरेंट सेक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्लासरूम के अंदर ध्यान रखना है कि अगर हमारा क्लासरूम शायद चलो ले लो 40 का है, 50 का है, तो 50 के क्लासरूम के अंदर हमने 5 लोगों का ग्रुप बना दिया, तो जो है स्टेप 1। तो स्टेप 1 आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि होम ग्रुप। हमें सबसे पहले होम ग्रुप क्रिएट करना है, उसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर दिया। अभी ये जो 5 स्टूडेंट है उसमें से एक नंबर के स्टूडेंट को हमने ये किया
उसके बाद 2 नंबर के स्टूडेंट को हमने वो टॉपिक दिया, 3 नंबर के स्टूडेंट को हमने वो वाला टॉपिक, 4 नंबर को दूसरा, 5 नंबर को दूसरा। दिस इज नाउ होम ग्रुप के अंदर हम पांचों 5 स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दे रहे हैं। तो 50 के क्लासरूम में अगर हम 5 के ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होने वाले, राइट। मैक्सिमम हमारे पास कितने ग्रुप्स होंगे? 10 डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास होने वाले हैं 50 के क्लास में अगर 5 के बनाए तो, राइट। तो सिमिलरली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देने। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि सारे 1 नंबर को साथ में करना है, सारे 2 नंबर को साथ में करना है, सारे 3 नंबर को साथ में करना है, सारे 4 नंबर को, सारे 5 नंबर को। ये हमारा हो गया एक्सपर्ट ग्रुप, जो हमारा दूसरा ग्रुप इन अ वे पूरे क्लासरूम के अंदर बना है। तो सबसे पहले होम ग्रुप, उसके बाद एक्सपर्ट ग्रुप में हमने 1 को साथ में कर दिया, 2 को साथ में कर दिया, 3 को साथ में कर दिया। अभी एक जो पूरा साथ में है तो उन सबके क्या है, सिमिलर टॉपिक्स है। तो सिमिलर टॉपिक पे उनको डिस्कशन करना है, उनको जो भी सारी चीजें मालूम है वो दूसरे बच्चों को, दूसरे स्टूडेंट्स को उनको बताना है, शेयर करना है, राइट। तो एक्सपर्ट ग्रुप में हमने एक ही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स वाले बच्चों को इकट्ठा किया है, ग्रुप बनाया है, और वहां पे वो सारी चीज एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके सीख रहे हैं। और फिर उनको दूसरा उनका मेन पर्पस ये भी है कि अब उनको वापस अपने होम ग्रुप में जाना है तीसरे स्टेप में, और उन्होंने जो भी सारी चीजें डिस्कशन की या तो फिर उनका जो भी टॉपिक था वो बाकी सारे 4 स्टूडेंट को समझाना है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट को हर एक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक बाकी सबको सिखाने, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सेग्रीगेट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। सेकेंड ग्रुप में हमने बच्चों को इकट्ठा कर दिया, 1 वाले को, 2 वाले को, और फिर एक दूसरे को समझा रहे हैं। और तीसरे वाले में स्टेप में हमें क्या करना है कि वापस होम ग्रुप में बच्चों को आ जाना है, और 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी 4 को सिखा रहे हैं, 2 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी सबको सिखा रहे हैं, 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी सबको सिखा रहे हैं। सिमिलरली 5 कॉन्सेप्ट्स बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो जिग्जॉ में हम लोग ये स्ट्रैटेजी या तो फिर ये मेथड फॉलो करते हैं। और आपको क्या लगता है कि इससे बच्चों को क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम बच्चों के साथ जिग्जॉ कभी भी करें कोई भी सेक्शन में? तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि शायद उनका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उनको ये भी मालूम पड़ेगा कि अच्छा मुझे किस तरीके से बच्चों को समझाना है, किस तरीके से दूसरों को मैंने जो सारी चीजें सीखी है उसको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो जैसे आगे हमने बेनिफिट्स की बात की, वही सारे बेनिफिट्स यहाँ पे भी हमें मोर और लेस देखने को मिलने वाले। सो दिस इज हाउ हम लोग होम ग्रुप क्रिएट करके जिग्जॉ इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अनु मैम की शायद कोई कमेंट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैप, सर्कल, डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग इज बेटर फॉर स्टूडेंट मैम। ओके, तो ये सारी चीजें भी ऑफ कोर्स, ये सारी स्ट्रेटजीज कहीं ना कहीं बच्चों को किसी ना किसी तरीके से यूज होने ही वाली है। बट ऑफ कोर्स ये सारी चीज हमें भी कंसिडर करना है कि हमारे लिए फॉलो करना कितना इजी हो जाए। ये सारी जो स्ट्रेटजीज हमने यहाँ पे डाली है वो उनके लिए बेनिफिशियल भी है। बट हमारा जो जैसे हमने देखा कि हमारा जो भी टीचिंग स्ट्रेटजी है वो कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, राइट। कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन, सॉरी नॉट कॉन्सेप्ट ड्रिवन बट कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन। तो हमारा जो भी क्लासरूम का कॉन्टेक्स्ट है उनमें हम कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं या तो फिर फॉलो कर सके वो हमें डिसाइड करना है। तो अनु मैम, अगर आपको लगता है कि अच्छा कॉन्सेप्ट मैप उनके लिए बेस्ट है, सर्कल टाइम बेस्ट है, डिस्कशन बेस्ट है, तो आप उस हिसाब से वो सेग्रीगेट करके उनके साथ वही सारी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, सो यस, जैसे राजलक्ष्मी मैम बोल रही है कि हायर सेकेंडरी में ज्यादा यूजफुल होगा, तो ट्रू, ये हायर सेकेंडरी में ज्यादा यूजफुल होगा। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, अभी है रोल प्ले। रोल प्ले भी अगर देखा जाए तो हर एक सेक्शन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया और वो ग्रुप में हमने एक कॉन्सेप्ट या तो फिर एक चैप्टर बता दिया। जैसे कि ये स्पेसिफिकली हम लोग यूज कर सकते हैं सोशल स्टडीज में या तो फिर लैंग्वेजेस जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे, तो लैंग्वेजेस में जो भी पोएट्रीज है या तो फिर जो भी लेसन्स वगैरह है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स में हम बच्चों के साथ रोल प्लेस कर सकते हैं। तो अगर हमें रोल प्लेस फॉलो करने तो बच्चों को हमने कोई भी एक चैप्टर बता दिया या तो फिर कोई भी स्टोरी बता दी, अभी वो स्टोरी के ऊपर उनको वो पूरा एक चीज प्रिपेयर करके आना है ड्रामा जैसा। यस, जैसे रागिनी मैम बोली कि ड्रामा में भी सिमिलर चीजें होती है, तो वहां पे उनको हमने एक्सपीरियंस कराया है कि अच्छा आप ये रोल प्ले करोगे तो आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी और फिर आप दूसरों को किस तरीके से सिखाओगे वो सारी चीज यहाँ पे कंसिडर हम लोग करेंगे। सो दैट इज हाउ ड्रामा का पूरा सीन हम लोग क्रिएट करें और उसमें हम लोग बच्चों को
जितना भी 5 लोगों का अगर ग्रुप बनाया है तो 5 ही 5 लोगों को हम लोग रोल प्ले करने के लिए दे रहे हैं. सो दैट इज हाउ वी कैन यूज रोल प्लेज इनटू डिफरेंट लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स, या तो फिर सोशल स्टडीज हो गया, या तो फिर प्राइमरी सेक्शन में ये सारी चीज हम लोग ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाएंगे. यस, या तो फिर अगर हमें हमारे क्लासरूम में हमने आइडेंटिफाई किया कि मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे हैं शायद कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनमें दिख रहे हैं, राइट. तो अगर वो प्रॉब्लम्स को हमें आइडेंटिफाई करके अच्छे से खुद ही बच्चों को सिखाना है, खुद ही एक दूसरे को सिखा रहे हैं, वैसा सीन कुछ क्रिएट करना है, तो वो सारी जगह पे भी हम लोग उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए रोल प्लेस इंक्लूड कर सकते हैं, राइट. सो रोल प्लेस हमें उस तरीके से हेल्प आउट करेंगे. उसके बाद दूसरी जो हमारी स्ट्रैटेजी वो है ग्रुप वर्क असाइनिंग रोल्स. तो ग्रुप वर्क में हम लोग बच्चों को ग्रुप बना रहे हैं, सिमिलरली 5 या तो फिर 6 लोगों का, और हर एक इंडिविजुअल के पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे कि कोई पूरे ग्रुप को लीड करेगा, कोई पूरे ग्रुप का रिकॉर्ड रखेगा कि अच्छा इसके पास ये सारी चीजें करने को है, इसके पास वो सारी चीजें करने को है, इसके पास वो सारी चीजें करने को. तो एक है हो गया रिकॉर्डर, दूसरा हो गया रिपोर्टर. रिपोर्टर यानी वो सबसे सारी चीज इकट्ठा कर, अच्छा आपने क्या चीज की, आपने क्या चीज किया, आपने क्या चीज किया, और फिर हमें वो आके रिपोर्ट करे. उसके बाद चौथा जो होगा वो रिसोर्स मैनेजर होगा और टाइम कीपर होगा. तो जो भी हमने उनको कॉन्सेप्ट दिया है कि अच्छा आपको ये कॉन्सेप्ट अपने ग्रुप के अंदर ही समझाना है एक दूसरे को, तो वो हम लोग अलग अलग रोल में करने वाले हैं. तो आपका रोल है कि आपको रिसोर्सेज मैनेज करने. अच्छा आप एक दूसरे को अगर समझा रहे हो तो फ्लैश कार्ड से समझा रहे हो तो वो रिसोर्सेज आपको लेके आना है. उसके बाद आपको टाइम का भी ध्यान रखना है. अच्छा आपको सिर्फ आधे घंटे का एक्टिविटी मिला है तो आधे घंटे के अंदर आपको फिनिश करना है. तो टाइम कीपिंग के लिए हमने एक इंसान को रख दिया, और फिर कलेक्टर. तो सारी जो चीजें हमने ये आधे घंटे में की, तो वो सारी चीजों का कलेक्शन हमें करना है, राइट. तो ये हो गया ग्रुप वर्क असाइनिंग रोल्स. तो जैसे राजलक्ष्मी मैम भी बोल रहे हैं कि आई यूज टू टीच इन पॉइंट वाइज. ओके ओके. उसके बाद जैसे कि ग्रुप वर्क असाइनिंग रोल हो गया, तो उसमें भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने 5-5 का ग्रुप बनाया है, या तो फिर शायद एक 10 का ग्रुप बनाया पर उसमें से 2 लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं, फिर वापिस दूसरे 2 लोग रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं, बाकी के 2 लोग रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं. दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट डिफरेंट रोल्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स. तो ये भी उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स उनको सिखाता है. सो अगर हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन हमारा बनाना है, या तो फिर हमारे जो भी स्ट्रैटेजी यूज करें उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ये हम बच्चों से ही करवा सकते हैं, राइट. तो ये हो गया ग्रुप वर्क असाइनिंग रोल. उसके बाद हो गया डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड एक्सप्लेन. तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि एज टीचर जो सारी चीज हम लोग बच्चों को दिखा रहे हैं, केमिस्ट्री लैब में हो गया, या तो फिर हमारे फिजिक्स लैब में हो गया, या तो फिर हमारे मैथ्स में हो गया, जो भी हम बच्चों को सम करके दिखा रहे हैं, तो इन वे हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि एग्जाम्पल की तरह, और फिर वो एग्जाम्पल से हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड एक्सप्लेन. अभी इसमें एज टीचर्स ये तो हम फॉलो कर ही सकते हैं, बट अगर हमें ऐसा है कि हमें बच्चों को खुद को भी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, तो वहां भी हम छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, और वो ग्रुप के अंदर एक दूसरे को वो लोग डेमोन्स्ट्रेट करे अलग अलग चीजें, और फिर डेमोन्स्ट्रेट करके वो एक्सप्लेन करे. सो वो जो खुद ने चीज सीखी है, वो चीज सीखने के बाद हम किस तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, उसके लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए होगी, वो सारी चीज बच्चे खुद से सीख सकते हैं, राइट. तो ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं. उसके बाद अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें, तो ये हम लोग को अगर बच्चों में क्रिएटिविटी बिल्ड ऑन करना है, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड ऑन करना है, अगर हमें बच्चों को खुद से नए नए आइडियाज जनरेट करवाने हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द मोस्ट यूजफुल स्ट्रैटेजी वी कैन से. तो यहाँ पे भी हम ये पूरे क्लास में इंडिविजुअली भी करवा सकते हैं, या तो फिर अगर ग्रुप क्रिएट करके करना है तो भी कर सकते हैं. तो इसमें क्या करना है कि अगर हम ग्रुप क्रिएट करके कर रहे हैं, तो ग्रुप हमने 5-5 के वापस क्रिएट कर दे, और हर एक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स बच्चों को दे रहे हैं. फिर उसके ऊपर उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, वो आइडिया एग्जैक्टली क्या है, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं. अच्छा ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि आपको हर एक जैसे कि अगर सेकेंडरी साल की बात करें, तो एक को वाटर दे दिया, एक को सॉइल दे दिया, एक को एयर दे दिया, राइट. तो दिस इज हाउ उनको ये टॉपिक के ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है कि अच्छा पानी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अच्छा पानी अगर उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे तो इसका ये बेनिफिट मिलेगा, तो उसका यूजेज
उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो भी अलग अलग चीजें हो सकती है, उसके बेनिफिशियल पॉइंट्स, तो वो हम लोग बच्चों को बोले कि अच्छा इसके ऊपर आपको नई नई आइडियाज जनरेट करके आना है। कि जैसे हो गया कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो हो गया, वो हमने बच्चों को बता दिया, तो इसका हम और ज्यादा किस तरीके से डिफरेंटली यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर उनको नई नई आइडियाज लेके आने। सो बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक अलग अलग बच्चे के पास से अलग अलग आइडियाज लेके आ रहे हैं, और फिर उनको वो सारी आइडियाज अपने क्लासरूम के अंदर एक दूसरे के साथ शेयर करनी। अभी जितना ज्यादा आइडिया शेयर करेंगे, जितना ज्यादा वो लोग सोचेंगे, उतना ज्यादा वो और ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग उनके अंदर बिल्ड ऑन होगा। और फिर अगर वो जब शेयर कर रहे हैं तो शेयरिंग करते टाइम डिस्कशन भी हो रहा है, तो किस तरीके से दूसरों के ओपिनियंस हमें एक्सेप्ट करने हैं, या तो फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अगर राइट है तो दूसरों को किस तरीके से समझाना है, ये सारी चीज हम बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं विद ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये हो गया। उसके बाद अगर दूसरी स्ट्रैटेजी देखें तो पियर ट्यूटरिंग हमने ऑलरेडी काफी बार डिस्कशन कर लिया है, बट अगर इसको स्पेसिफिकली हमें इम्प्लीमेंट करना है तो क्लासरूम के अंदर हमने दो दो के ग्रुप बना दिए, दो दो की पेयर बना दी। अभी दो दो की पेयर कैसी होती है कि एक बच्चा शायद थोड़ा सा दूसरे वाले बच्चे से थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे है, नॉट टू मच पर थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे है, और वो उसको सिखा सकता है। बिकॉज पियर ट्यूटरिंग जैसे सोशल साइकोलॉजी या तो फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अगर बात करें तो वाइगोत्स्की करके एक रिसर्चर थे, उन्होंने पियर टू पियर लर्निंग की बात की थी। और पियर टू पियर लर्निंग में एक ऐसे बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं जहाँ पे इसको थोड़ी चीजें ज्यादा आती है और इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो सारी चीजें समझने में। और जब भी पियर टू पियर लर्निंग हो रहा है और एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझाएगा तो बहुत ज्यादा जल्दी से उनको याद रह जाएगा। तो ये भी हम कोई भी सेक्शन में फॉलो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद प्ले एंड बी एक्टिव, सेक्शन ग्राउंड पे भेज दिया है तो फिर खुद को ये चीज करनी है, और उससे वो क्या सीख रहे हैं, क्या क्या नई नई चीजें वो लेके आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्ले इन अ वे उनकी पूरी बॉडी को, उनके अलग अलग सेंसेस को, जो हमने स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, तो सारी चीजें उनकी एक्टिवेट कर रहा है, उनको और ज्यादा एनर्जेटिक बना रहा है, और उनको उनका जो लर्निंग प्रोसेस है, उनका जो रिजल्ट हम लोग लेने वाले हैं और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए। तो प्ले एंड एक्टिविटी का हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स मीट नेचर, बच्चों को हमें नेचर वॉक पे लेके जाना है या तो फिर गार्डन में लेके जाना है। और स्पेसिफिकली ये भी शायद हम लोग देखें तो प्राइमरी सेक्शन में ज्यादा अच्छे से फॉलो हम लोग कर पाएंगे। और अगर हायर सेकेंडरी की बात करें तो नेचर वुड बी हेल्पफुल इन टू दैट बायोलॉजी चैप्टर, तो वहां पे हम लोग बच्चों को नेचर के अंदर लेके जा रहे हैं, और फिर आप वहां पे क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ऑब्जर्वेशन की बेस पे डिस्कशन करके सारी चीजें हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं। तो नेचर हमें उस तरीके से हेल्प करेगा, जैसे प्राइमरी सेक्शन में सॉइल सिखाना है या तो फिर प्लांट सिखाने हैं, ट्रीज के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल सिखाने, या तो फिर शेप सिखाने, डिफरेंट टाइप सिखाने। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज नेचर, क्योंकि नेचर में हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। तो वेदर इट बी हमारा स्कूल का छोटा सा गार्डन, या तो फिर हमारा जो ग्राउंड है वो, या तो फिर इवन हम लोग नेचर के टाइम पे बच्चों से क्लासरूम के अंदर ही उनके घर पे अगर कोई छोटा सा पौधा अवेलेबल है तो वो मंगवा सकते हैं, या तो फिर जो मेथी के सीड्स वगैरह होते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो नेचर का हम यूज क्लासरूम के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से चैप्टर पढ़ाए, कौन से कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, उस हिसाब से नेचर का यूज करना है। उसके बाद नो सर्च एंड लर्न। अभी नो सर्च एंड लर्न यानी बच्चों को एक पर्टिकुलर हम लोग टॉपिक दे रहे हैं और वो टॉपिक के ऊपर सिर्फ टॉपिक का नाम दे रहे हैं, वो टॉपिक के नाम के ऊपर उनको जो चीज मिल रही है, जहां से उनको ढूंढ के लाना है, रिसर्च करके लाना है, बुक पढ़नी है, ऑनलाइन ढूंढना है, खुद से सर्च करना है, तो ये सारी चीज वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम उनको बोल दे जो हमारे प्राइमरी सेक्शंस में होता है कि पुलिसमैन किस तरीके से काम करता है, उसके बाद डॉक्टर किस तरीके से काम करता है, तो ये अगर कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा रहे हैं तो शायद हम लोग बच्चों को सिर्फ बता दें कि आपको कम्युनिटी हेल्पर्स ये टॉपिक है, उसके बाद आपको खुद से कम्युनिटी हेल्पर्स कौन कौन होते हैं, वो क्या क्या सारी चीजें करते हैं, उसके बाद उनके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो डे टू डे एवरी डे उनके क्या क्या टास्क वगैरह होते हैं, तो उनको हमने फ्री छोड़ दिया कि आपको खुद से रिसर्च करके आना है, और फिर वो खुद से सीख रहे हैं और क्लासरूम के अंदर आके शेयर कर रहे हैं।
तो ये जो नो शेयर एंड लर्न है, इन अ वे उनको हेल्प कर रहा है रिसर्च किस तरीके से करना है, या तो फिर खुद से किस तरीके से कोई भी चीज सीखेंगे उसमें, और जितना ज्यादा वो खुद से सीखेंगे उतना ज्यादा वो इंडिपेंडेंट जल्दी बन जाए, राइट। तो इस तरीके से नो सर्च एंड लर्न यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस एंड लर्न, तो फर्स्ट इन एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा हम बच्चों के सेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं, जितना ज्यादा फर्स्ट इन एक्सपीरियंस उनको करवा रहे हैं, जैसे कि गार्डन विजिट हो गया, नेचर वॉक हो गया, बायोलॉजी लैब हो गया, केमिस्ट्री लैब हो गया, फिजिक्स लैब हो गया। उसके बाद अगर म्यूजियम हम बच्चों को घुमाने लेके जा रहे हैं, तो इन अ वे हम बच्चों को क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट इन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस बच्चों को कुछ ना कुछ चीजें सिखा रहे हैं। तो इवन हायर सेकेंडरी या तो फिर सेकेंडरी सेक्शन में भी कौन से चैप्टर में हम बच्चों को क्या क्या एक्सपीरियंस करा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करवाएंगे फर्स्ट इन एक्सपीरियंस, उतना ज्यादा बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, राइट। उसके बाद ये तो यहाँ पे हमारी सारी स्ट्रैटेजीज कंप्लीट हो गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई चीज अगर आपको कुछ शेयर करना है तो 2 मिनट के लिए ये अभी देखेंगे कि ये जो भी सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज की हमने बात की, तो बच्चों को बेनिफिट किस तरीके से करवाएगा। तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज की बात की, वो बच्चों को कहीं ना कहीं जो भी हमने ग्रुप वर्क की बात की या तो फिर शेयरिंग की बात की, तो वो टीम वर्क सिखाएगा, कोलैबोरेशन सिखाएगा, उनको खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा कि अच्छा मुझे रिस्पॉन्सिबली कौन सी चीजें फॉलो करनी है, किस तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट मैंने सीखे हैं वो बच्चों को सिखाने हैं। अकाउंटेबल बनाएगा कि अच्छा ये चीज मैंने सर्च आउट की थी, वह शायद ही गलत है, तो इसको एक्सेप्ट करके अपनी गलती को सुधारना। तो अकाउंटेबल उनको बनाएगा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। उनका सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस बिल्ड ऑन होगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाएगा। अभी हमने टॉपिक तो दे दिया बच्चों को, और फिर बोल दिया कि आपको खुद को यहाँ पे कुछ भी चीजें सीख के आनी है या तो फिर सर्च करके आनी है। तो ये जो उनके सामने प्रॉब्लम आया कि अच्छा मैम ने सिर्फ नाम दे दिया, अभी ये जो टॉपिक दिया है उसको कहाँ से समझू, कैसे समझू, तो ये छोटी सी जो प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हुई है, तो उनको कैसे वो सॉल्व करे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट हम बच्चों को बना रहे हैं, उनको क्रिटिकल थिंकर्स बना रहे हैं। उनके जो ओपिनियंस है उनको किस तरीके से वो खुद से शेयर कर सके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से दूसरों के सामने रख सके, तो वो हम उनको फ्रीडम दे रहे हैं। और वो दूसरे जो बोल रहे हैं उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, वो भी हम बच्चों को एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। ये सारे बेनिफिट्स है, और अल्टीमेटली बच्चों को क्रिएटिव बना रहे हैं, और उनकी जो खुद से सीखने की एक अंदर से चाह होती है, वो हम लोग बहुत ज्यादा बच्चों में जगा रहे हैं। तो ये सारी डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो बच्चों को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, तो हम बच्चों को हेल्प कर रहे हैं टू बिकम अ सिटीजन ऑफ 21st सेंचुरी वर्ल्ड। बिकॉज अभी जो 21st सेंचुरी वर्ल्ड हो है, और हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी ही चीजों की बात की है। तो ऑफकोर्स उसके बारे में भी आपने कहीं ना कुछ चीजें पढ़ी होगी। तो ये जो सारी स्ट्रैटेजीज अगर थोड़ी सी भी हम इसमें से फॉलो करेंगे, तो बच्चों को कितना ज्यादा बेनिफिट करवा सकते हैं। और अल्टीमेटली हम लोग उनको 21st सेंचुरी के सिटीजन बना रहे हैं, जहाँ पे रोटे लर्निंग नहीं हो रहा है, बट रिसर्च बेस्ड सारी चीजें हो रही है, और खुद से बच्चे सीख रहे हैं।